तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. A very good afternoon to one and all who have joined this webinar today. I, Dr. Priya Kapoor, take this privilege to welcome you all to this webinar organized by DAV Centenary College, Faridabad, in collaboration with DGHE Haryana. The topic of today's webinar is strengthening of physical and spiritual health through yogic science. The topic is very much relevant in today's pandemic situation. A physically fit body and a mentally strong person can only cope up in this scenario. So, without taking much time, I would like to introduce our speakers for the day. We have distinguished speakers today among us, and it is our proud and privilege to have them with us in today's webinar. So, first of all, I would like to introduce our first speaker of the day, Professor Surendra Kumar Tyagi ji. Dr. Tyagi is head of the Department of Yogic Science, Gurukul Kangri University, Haridwar. He is a renowned personality with 24 years of teaching experience. He has around 30 research papers in his credit and has guided around 20 research students in the area of yogic sciences. We are honored to have you, sir, with us today, and it is our privilege that you have joined this webinar and are going to address the audience of today's webinar. Next, I would like to introduce and welcome our next speaker, who is a renowned author and research scholar, Dr. Sachin Kumar ji. He is head of the Department of Yog Shatma Clinic and Research Center, Patanjali Ayurvedic Hospital, Patanjali Yogpith, Haridwar. Dr. Sachin, with the blessings of Swami Ramdev ji, he has been serving in the humanity in the field of medicine through yoga and Shatkarma from last 20 years. He has conducted several yogic workshops and seminars all around the globe. We are honored to have you, sir, with us today in this webinar. I welcome you all on behalf of DAV Centenary College. So without taking much time, I would like to invite the convener of this webinar, Dr. Narendra Kumar, to give us brief introduction about today's program, today's webinar to our audience, and welcome the guests also. Mic over to Dr. Narendra, sir. Sir, unmute yourself. Right. Thank you so much, Madam. Thank you so much, Dr. Priya Kapoor. गुड आफ्टरनून एवरीवन, नमस्कार, प्रणाम सभी को। आज के इस वेबिनार में जुड़े सभी गणमान्य व्यक्तियों का डीएवी परिवार में हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा डीएवी परिवार के मुखिया पद्म श्री पूनम सूरी जी का, जिनके आशीर्वाद व मार्गदर्शन में सभी डीएवी संस्थान कार्य कर रहे हैं। मैं स्वागत करता हूं आज के इस वेबिनार के मुख्य वक्ताओं का, प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार त्यागी जी, डिपार्टमेंट ऑफ योगिक साइंस, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार, व डॉक्टर सचिन कुमार जी, एचओडी, डिपार्टमेंट ऑफ योग एंड सटकर्म, पतंजलि योगपीठ, हरिद्वार से। इन दोनों ही महान हस्तियों का हमारे बीच में ज्वाइन होना व हमारे इस कार्यक्रम के लिए समय निकालना हमारे लिए अत्यंत ही गौरव की बात है। सर, आपके इस वेबिनार में समस्त डीएवी परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारी कार्यवाहक प्रिंसिपल
डॉक्टर सविता भगत मैडम का। मैडम के मार्गदर्शन व प्रोत्साहन के कारण ही आज का यह वेबिनार का कार्यक्रम संभव हो पाया। हूं सभी पार्टिसिपेंट्स का। मैं बताना चाहूंगा आज हमें भारत के हर कोने से इस वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन मिले हैं। नरेंद्र जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर अनम्यूट कर लीजिए, दोबारा म्यूट हो गया आपका। सर मैं डीएवी कॉलेज सेंट्रल कॉलेज फरीदाबाद के फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के बारे में कुछ आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं कि कॉलेज के खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय व राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक पहचान बनाई है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की जनरल ट्रॉफी में अपना नाम दर्ज करवाकर डीएवी कॉलेज ने फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट और एमडी यूनिवर्सिटी के अंदर एक इतिहास रचा है। डीएवी कॉलेज के खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपना नाम दर्ज करवाया है, जिले का नाम रोशन किया है। कॉलेज की योगा टीम ने महाविद्यालय स्तर पर निरंतर 5 वर्षों से प्रथम स्थान प्राप्त कर जिले में और योग में अपनी एक पहचान बनाई है। योगा के जो हमारे छात्र हैं, खिलाड़ी हैं, उन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पदक प्राप्त किए हैं। मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए आज के वेबिनार में जुड़े सभी टीचर्स, स्कॉलर, स्टूडेंट्स और हर वर्ग के मेहमानों का फिर से अभिनंदन करता हूं और हार्दिक स्वागत करता हूं। और कार्यक्रम को इस कड़ी में आगे बढ़ाते हुए कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर सविता भगत को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे आए और मेहमानों का स्वागत करें। ओवर टू डॉक्टर सविता भगत। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी। सबको बहुत प्यार भरा, आदर भरा, सम्मान भरा नमस्कार। आज इस वेबिनार के मौके पे मैं फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को बधाई देना चाहती हूँ कि जिन्होंने स्ट्रेंथनिंग ऑफ फिजिकल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ थ्रू योगिक साइंस इस टॉपिक पे, इस थीम पे आज ये वेबिनार अरेंज किया। और इस वेबिनार में हमारे साथ बहुत गणमान्य स्कॉलरली, जिन्होंने फील्ड वर्क भी बहुत किया है और रिसर्च वर्क भी बहुत किया है, जुड़े हैं प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार त्यागी जी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ योगिक साइंस गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी से हैं। और दूसरे महानुभव जो कीनोट स्पीकर हैं हमारे, वो डॉक्टर सचिन कुमार जी हैं, एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ योग शतकर्मा क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर पतंजलि आयुर्वेद हॉस्पिटल पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से। मैं सबसे पहले आज के कीनोट स्पीकर्स का बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट आई एक्सटेंड ए वेरी वार्म वेलकम टू देम, ए वेरी रिस्पेक्टफुल वेलकम टू बोथ ऑफ देम। और ये टॉपिक, जैसा कि अभी बात कर ही रहे थे थीम के बारे में, इस समय बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि हम देख रहे हैं पैंडेमिक का टाइम है। फिज़िकली भी हमने बहुत सफ़र किया है, और फिज़िकली जब सफ़र करते हैं और मेंटली और स्पिरिचुअली भी हम हर्ट हुए हैं बहुत ज़्यादा, तो इस समय ज़रूरत है ये एक रीजुविनेशन की, सबको समझने की। योगिक साइंस बहुत प्राचीन साइंस है। इंडिया की फ़िलासफ़ी की जब हम बात करते हैं, बहुत सारी उसकी ब्रांचेज़ हैं, उनमें एक ब्रांच हमारी योगिक साइंस की भी है। तो योग कैसे हमें हेल्प करता है ज़िंदगी जीने में, एक स्वस्थ ज़िंदगी जीने में, एक फुलफिल्ड और कंटेंटेड लाइफ जीने में, और अपने आप को रियलाइज़ करने में, जो हम ह्यूमन बीइंग के तौर पे इस प्लैनेट पे आए हैं, तो उसको समझने के लिए हम योगिक साइंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये आज के हमारे
दोनों कीनोट स्पीकर्स हमारे साथ शेयर करेंगे, दोनों के अपने अपने थीम्स हैं, अपने स्पेशल एरियाज हैं जिस पे वो हम सबको एड्रेस करेंगे। योग की बात शुरुआत चाहे इंडिया से है, लेकिन आप देख रहे हैं वेस्ट ने भी कैसे इसको पकड़ा है, और हमें भी लगता है कि जो चीज़ वेस्ट में चली जाती है फिर हम भी उसके बहुत फ़ैन हो जाते हैं। तो आजकल योग की कितनी बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी हम मनाने लगे हैं, और ये बहुत प्राउड की बात है हमारे लिए कि इंडिया जो है योग के कारण, और भी बहुत सारी वजह हैं, लेकिन विश्व के मानचित्र पे छाया है। अब जो योग की बात है वो, मैं अगर अपने बचपन में जाती हूँ, मैं शब्द योग के बारे में सोच रही थी तो मुझे याद आया 3rd 4th में जब मैंने मैथ्स करना सीखा, तो हिंदी मीडियम में हमारी क्लास में एक पंक्ति ऊपर लिखी है, नीचे एक पंक्ति लिखी है, अंक लिखे हैं और लिखा है योग करो। तो योग कर दिया हमने कुछ अंकों का, और योग करके वो जो पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति है वो मिल गए और एक पंक्ति बन गए, एक उसका जवाब आ गया, योग हो गया। योग मीन्स मिक्सिंग, योग किसी को मिलाना। अब योग को बहुत लोग योगा भी कहने लग गए, वो भी उसका रूप हमने थोड़ा बिगाड़ा। बहुत से लोगों को योग के फिजिकल पोस्चर्स जो हैं वो समझ आते हैं कि योग का मतलब है कि फिजिकली हमने कैसे कैसे पोस्चर्स करने हैं, उसके भी डिफरेंट बेनिफिट्स हैं, डिफरेंट नाम हैं, और उनके नाम से हम फिजिकल अपने आप को फिटनेस के लिए वो करते हैं, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए हम वो करते हैं, और प्राणायाम करते हैं। बहुत से लोग इस बात से जुड़े हैं कि फिजिकल वेलबींग के लिए योगा होता है, योग होता है, और उसके लिए हम अपनी फिजिकल एक्सरसाइज भी करते हैं, बॉडी की बेंडिंग है, फ्लेक्सिबिलिटी है, और उसके साथ साथ प्राणायाम से हम अपना ब्रीदिंग, क्योंकि वो लाइफ एनर्जी है हमारा सांस, उससे हम वो कंट्रोल करते हैं। लेकिन ये एक पहला स्टेप है मेरे हिसाब से जो मैं समझ पाती हूँ, क्योंकि फिजिकल वेलबींग के साथ साथ मेंटल एंड इमोशनल और स्पिरिचुअल वेलबींग बहुत ज़रूरी है। योग यहाँ तक जाता है। तो आपको पता है कि जैसे हम आसन करते हैं तो वो प्रॉपर एक एक्सरसाइज हो जाती है हमारी फिजिकल वेलबींग के लिए, फिर प्रॉपर हमारी ब्रीदिंग बड़ी ज़रूरी है, फिर हम प्रॉपर रिलैक्सेशन करते हैं। जब योग करते हैं तो हम शवासन करते हैं, रिलैक्सेशन बॉडी की ज़रूरी। उसके बाद वेलबींग के लिए हमारे पास प्रॉपर डाइट भी ज़रूरी। अगर आप डाइट में नॉन वेजिटेरियन लेते हैं या कुछ भी अलग अलग तरीके का बहुत ऐसा खाते हैं और सेंसेस को बहुत अपनी पूरा करते हैं डाइट के पीछे जाके, तो भी आप योग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्रॉपर डाइट का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल। और उसके बाद है पॉजिटिव थिंकिंग, मेडिटेशन, ध्यान लगाना। तो ये अगर सारी चीजें होती हैं तो योग होता है। इसी के पैटर्न पे महर्षि पतंजलि का जो एट फोल्ड पाथ ऑफ योगा, जिसे अष्टांग योगा कहा गया है, जिसमें उन्होंने शुरुआत ही यम नियम से करी है कि आपकी लाइफ में आप लाइफ कैसे जी रहे हो, लाइफ जीने में आपका मोरल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, आपकी एथिकल वैल्यूज क्या है, जिंदगी कैसे जी रहे हैं, वो यम नियम है, वो धारने पड़ते हैं। वहां से शुरुआत करते हैं। फिर हम प्राणायाम पे आते हैं, प्रत्याहार की बात करते हैं योग में। प्रत्याहार का मतलब है कि हम सेंसेस के जरिए सारी जिंदगी को देख रहे हैं, और सेंसेस से हम बहुत कुछ नेगेटिव भी अपने अंदर ले लेते हैं, और फिर हमारी सेंसेस हमें ड्राइव करती है। हम सेंसेस के मालिक नहीं रहते, बल्कि सेंसेस हमारी मालिक बन जाती है। तो प्रत्याहार की बात होती है, और उसके बाद बात होती है धारणा की, जिसमें हमें अपना फोकस बनाना पड़ता है, कंसंट्रेशन लानी पड़ती है, और फिर धारणा से धारणा, ध्यान और समाधि की तरफ चलते हैं। तो ये सारी बात का मतलब है कि योग करना है एक ऑलमाइटी के साथ, योग करना है उस अनलिमिटेड पावर के साथ। हम अपने आप को एक लिमिटेड दायरे में फिजिकल बॉडी में आ जाते हैं, उसी से ही जुड़े रहते हैं, और फिर सेंसेस के सहारे चलते रहते हैं, थॉट्स, इमोशंस, इन सब चीजों के सहारे हम सोचते हैं हम ये हैं, जबकि हम असल में क्या है वो हमें समझ नहीं आता। तो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत सीरियस बात है। और ह्यूमन बीइंग का जो हम जन्म लेते हैं मानस रूप में, जब हम आए हैं, उसका लक्ष्य हमारा योग का है, सेल्फ रियलाइजेशन का है। वो सेल्फ रियलाइजेशन हमें तभी होगी जब हम थोड़ा ध्यान करेंगे, थोड़ी धारणा करेंगे, थोड़ी मेडिटेशन करेंगे, तो थोड़ा प्रभु के साथ, उस परमात्मा के साथ, उस लिमिटलेस के साथ जुड़ेंगे। वो इनफाइनाइट है और हम अपने आप को फाइनाइट समझते हैं, और फिर अपने थॉट्स के साथ घूमते रहते हैं। सारी जिंदगी हमारी एक जैसी होती है, जैसी मेरी कल लाइफ थी आज भी वैसी है, कल भी वैसी ही होगी।
क्योंकि वही थॉट्स मेरे माइंड में बार बार चलते रहते हैं, उन्हीं थॉट्स को हम एनर्जी देते रहते हैं और पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जा पाते। ज़्यादातर हमारे थॉट्स नेगेटिव होते हैं, इसीलिए हम फिजिकली मेंटली अशांत भी रहते हैं, पीसफुल नहीं रहते हैं। पीस सबको पसंद है, लेकिन पीस अंदर होएगी तभी पीस बाहर होगी। तो अंदर की पीस के लिए योग का बड़ा महत्व है। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इस एरिया में, लेकिन मुझे ये चीज़ आध्यात्मिक उन्नति करना, अध्यात्म की तरफ चलना, अपने आप को पॉजिटिविटी में रखना, ये मुझे बहुत पसंद है। और मैं फिर एक बार धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर नरेंद्र जी का, डॉक्टर उमेश जी का और उनके साथ जुड़े हुए सारी टीम का। आज स्टेज देख रही थी प्रिया जी, उनका और आईटी सेल का, और उसके साथ जुड़े हुए सारे हमारे जितने मेहमान हैं, गेस्ट हैं, कॉलेज की फैकल्टी है और बाहर से भी बहुत सारे लोग हैं। त्यागी सर, आपको अच्छा लगेगा कि नरेंद्र जी बता रहे थे मोर देन 1000 लोगों ने इसके साथ। बिल्कुल बढ़िया। मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, आगे ही मैंने वक्त ज़्यादा ले लिया, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी त्यागी सर से कि वो अपना व्याख्यान हमें दें, हमारे और दरवाजे खुले, खिड़कियाँ खुले हमारी बुद्धि की, और हम आज इस मौके का फ़ायदा उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से सबका, आए हुए मेहमानों का बहुत थैंक यू सो मच। त्यागी सर, आप स्टार्ट कर सकते हैं। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत आपका। आपने तो बड़ा अच्छा समझाया, मैं तो इतना अच्छा समझा नहीं पाऊंगा। एक तो मैं पहले क्षमा चाहते हुए ये पूछना चाहूंगा कि मुझे उमेश ने बताया था कि आपको सर 3 बजे से 3:45 तक बोलना है, तो अब लगभग 15 ही मिनट शेष हैं, दूसरे स्पीकर का टाइम है, तो मुझे कितना समय बोलना है पहले एक तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा मैडम। सर, आप आधा घंटा देंगे, हम कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, हम सुनना चाहेंगे और लोग जुड़े रहेंगे, इसमें कोई वो अच्छा, ठीक है मैडम, धन्यवाद। सबसे पहले मैं सभी को नमस्ते करता हूं अपनी ओर से, सादर नमस्ते। और डीएवी परिवार एवं डीएवी कॉलेज सेंचुरी का मैं हार्दिक आभारी हूं, विशेषकर मैडम डॉक्टर सविता जी का, प्रिय उमेश का, जिन्होंने मुझे सभी से मिलने का, जुड़ने का मौका दिया है। उमेश ने मुझे कहा था कल कि सर आध्यात्मिक जागृति में योग की क्या भूमिका है, इसके ऊपर आप अपने विचार रखें। लेकिन यहाँ जब मैडम बोली तो मेरे थोड़े विचार और भी इसमें मुझे प्राप्त हुए, मैडम से सीखने को मिला कि शरीर और अध्यात्म दोनों के लिए योग की क्या उपयोगिता है, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगा। तो मैडम ने बहुत अच्छा बताया कि भाई योग मिलने या जुड़ने का नाम है, लेकिन यहाँ एक प्रश्न पैदा होता है कि या जुड़ना किससे हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, वैसे मैं भी पढ़ाता रहा इतने दिनों तक। शक्ति का मिलन योग है, किसी ने कहा कुंडलिनी और ब्रह्म तत्व का, लेकिन जो अच्छा लगा वो पतंजलि जी का लगा, महर्षि पतंजलि का। न वो आत्मा परमात्मा की बात करते हैं, वो अपने आप से जुड़ने की बात करते हैं। वो कहते हैं जब योग सिद्ध हो जाता है तो क्या स्थिति प्राप्त होती है, उसके लिए वो सूत्र देते हैं कि सब जीवात्मा चित्तवृत्ति का निरोध होने पर जो जीवात्मा है वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। इसका तात्पर्य है कि हमें अपने आप से जुड़ना चाहिए। आप विचार करके देखिए, जीवन भर हम दूसरों से जुड़ने का प्रयास करते रहते हैं, अर्थात हम बहिर्मुख होते हैं, दूसरे व्यक्तियों से जुड़ना चाहते हैं, दूसरे विषयों से जुड़ना चाहते हैं, पदार्थों से, वस्तुओं से जुड़ना चाहते हैं, उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं। कभी भी हमारे मन में ये प्रश्न नहीं आता कि मैं कौन हूं, मुझे अपने आप से भी जुड़ना चाहिए। और जिन बिरले पुरुषों के मन में ये प्रश्न आ जाता है, वास्तव में उनकी योग यात्रा आरंभ हो जाती है। यदि वास्तव में योग आपको शुरू करना है, आरंभ करना है, जीवन में धारण करना है, तो ये प्रश्न पैदा कीजिए अपने अंदर, मैं अपने आप से कैसे जुड़ूं। और जब इस प्रश्न के ऊपर हम चिंतन करते हैं तो पता चलता है कि मैं तो अपने आप का जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, जिसे पतंजलि कहते हैं कि तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, उसको तो मैं जानता ही नहीं हूँ। जो चेतन तत्व है, जो आत्म तत्व है, उससे तो मेरा परिचय है ही नहीं, केवल जानकारी मात्र है कि इस शरीर में कोई आत्म तत्व निवास करता है, इतना ही मैं परिचित हूँ उससे। इससे आगे वो कैसा है, कौन है, मैं नहीं जानता। इसलिए हमें शुरू कहाँ से करना होगा। यहाँ दो प्रश्न पैदा होते हैं, किससे मिले और कैसे मिले। तो किससे मिले तो का उत्तर आ गया कि भाई अपने आप से मिले, लेकिन अपने आप से कैसे मिले, तो इस पर विचार जब हम करते हैं
तो पता चलता है कि हम जहां होते हैं हमें वहीं से शुरुआत करनी होती है। मान लिया हम जहां पर बैठे हुए हैं, यदि बाहर जाना है तो पहला पैर हमें वहीं पास में रखना होगा। अभी हम अपने इस फिजिकल स्ट्रक्चर से ही, जो स्थूल शरीर जिसको आप कहते हैं, उपनिषदों की भाषा में जिसे हम अन्नमय कोश कहते हैं, अभी हम इसी से परिचित हैं। अब जब भी हम कोई पूछते हैं मैं कैसा हूं, तो मैं बताता हूं मेरा इतना फिजिकल स्ट्रक्चर ऐसा, हाइट इतनी है, मोटाई इतनी है, वेट इतना है, अर्थात मैं अपने आप को इसी रूप में देख रहा हूं। बहुत अच्छी बात है, मैं यहीं से आरंभ करना चाहिए। अब यहाँ फिर प्रश्न पैदा होता है कि अब इस अपने आप से कैसे जुड़े। तो भाई विचार करेंगे तो पता चलेगा, जैसे मैंने कहा उपनिषदें इसको अन्नमय कोश कहती हैं कि ये शरीर अन्न से निर्मित हुआ है, अन्न से ही पैदा हुआ है, अन्न से ही इसका पोषण होता है। इसीलिए मेरा जो आहार है, जिसकी चर्चा मैडम ने भी की थी अभी, कि हम नॉन वेज लेते हैं तो योग में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, बहुत ही अच्छी बात कही मैडम ने, क्योंकि जो हम आहार लेते हैं वैसे ही हम होते हैं। एक मोटी सी कहावत आपने सुनी होगी, जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। और हमें ज्ञान के द्वारा मुक्ति मानते हैं सारे के सारे दर्शन, कि ज्ञान यदि हमें प्राप्त होगा तभी हम बंधन से मुक्त हो पाएंगे, जिसको मुक्ति, मोक्ष, कैवल्य, अपवर्ग, निर्वाण, निःश्रेष आदि शब्दों से दर्शनों ने पुकारा है। वो बंधन क्या है? दुख की अनुभूति। दुख से हम तभी बच सकते हैं जब हमारे चित्त में ज्ञान पैदा होगा। और आप देख रहे हैं जिस चीज का हमें ज्ञान होता है वो चीज हमें हानि नहीं पहुंचा पाती। एक विद्युत कार है, यदि उसको विद्युत का पूरा ज्ञान है तो वो चलती लाइन में सारे काम कर लेता है, उसको पता है कहाँ छूना है कहाँ नहीं छूना है, वो उसको हानि नहीं पहुंचाती क्योंकि उसको उसका ज्ञान है। यदि हमें जीवन का यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो जाए तो जीवन की समस्याएं हमें दुख नहीं पहुंचा सकती हैं। और ये ज्ञान कहाँ से पैदा होगा? सतुगुणी आहार से। सांख्य दर्शन यदि आपने पढ़ा हो तो वहां सांख्य दर्शन कहते हैं ज्ञान किससे पैदा होता है? त्रिगुणात्मक प्रकृति है, सत्व रज और तम, उसमें जो सत्व गुण है वो ज्ञान पैदा करता है। इसीलिए उपनिषद ने कहा आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति। यदि आपकी डाइट शुद्ध होगी तो आपकी बुद्धि भी ठीक होगी, बुद्धि शुद्ध होगी, और बुद्धि शुद्ध होगी तो आपका जो ज्ञान है वो शुद्ध होगा। जब ज्ञान शुद्ध होगा तो हम अपने आप बंधन से मुक्त होंगे। तो अपने आप से जुड़ने के लिए सबसे पहले हमें अपने आहार को ठीक करना होगा। हमारा कितना दोहरा चरित्र है कि जो हमने मशीन भी बनाई है, हमने गाड़ी बनाई है, मुझे गाड़ी में तेल डलवाना है तो मैं वहां जाऊंगा उस पेट्रोल पंप पर जहां तेल अच्छा मिलता हो। क्यों? क्योंकि इंजन की लाइफ अच्छी रहेगी, तेल अच्छा डाला जाएगा। लेकिन ये जो परमात्मा ने मुझे मशीन दी है 100 साल के लिए जीने के लिए, इसमें मैं क्या क्या चीजें डालता रहता हूँ, इसमें मैं धुआं डालता रहता हूँ, इसमें मैं अल्कोहल डालता रहता हूँ, यदि मैं शुगर का पेशेंट हूँ मीठा डालता रहता हूँ, सारा दिन फास्ट फूड खाते रहते हैं, इसके अंदर हम न जाने क्या क्या डालते हैं। एक मुर्दे के साथ जाते हैं तो आकर स्नान करते हैं और दूसरा मुर्दा शरीर इसके अंदर हम डाल रहे हैं। एक पशु पक्षी को मारकर हम अंदर उसका भक्षण कर जाते हैं। ये दोहरा चरित्र हमारे शरीर को शुद्ध नहीं रहने देता। इसीलिए हमारी जो आगे की यात्रा है, जो ज्ञान प्राप्ति की यात्रा है, वो भी ठीक से हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ये मैं संक्षेप में बात करूंगा क्योंकि आधा घंटा समय है। योग तो ऐसा विषय है, ये तो पूरा का पूरा जीवन ही योग में होना चाहिए आदमी का। योग को जीवन पद्धति के रूप में यदि अपनाया जाएगा तो ज्यादा लाभ मिलेगा। योग कोई घंटा 2 घंटा करने की चीज नहीं है। योग तो जब से आपकी आंख खुलती है और जब तक आप बिस्तर के ऊपर जाते हैं तब तक आपका जीवन योगमय होना चाहिए, तभी ये योग आपको पूर्ण रूपेण लाभ पहुंचाता है। अब शरीर के पहले स्टेप मैंने उठाया, अपने आहार की शुद्धि मैंने कर ली। अब आगे मुझे अपने प्राण को व्यवस्थित करना है, क्योंकि प्राण ही सारे संसार को, सारे ब्रह्मांड को संचालित कर रहा है। छोटे से छोटा एक सूक्ष्म से सूक्ष्म परमाणु भी इस ब्रह्मांड का यदि स्पंदित हो रहा है तो प्राण के कारण ही हो रहा है। और वही समष्टिगत प्राण इस व्यष्टि रूपी शरीर में मेरे शरीर को संचालित कर रहा है। और जब ये प्राण अव्यवस्थित हो जाता है तो मैं रोगी हो जाता हूँ, मैं दुख अनुभूत करने लगता हूँ, मैं शरीर के रोगों से या मन के रोगों से प्रभावित होने लगता हूँ। जितना भी आप योग को पढ़ेंगे तो जानेंगे वायु के कुपित होने से, आयुर्वेद भी मानता है इस चीज को कि सबसे पहले वायु ही कुपित होती है, फिर जो आपका कफ या पित्त है वो कुपित होते हैं। जो त्रिदोष बताए हैं आयुर्वेद में, जिनसे हमारे शरीर की संरचना हुई है। और जब ये तीनों साम्य अवस्था में होते हैं तो हम स्वस्थ होते हैं, और जब ये विषम अवस्था में आ जाते हैं तो हम रोगी हो जाते हैं। और इनमें जब आगे पढ़ेंगे आप तो पता चलेगा कि वायु ही इन बाकी दोनों दोषों को कुपित करती है।
और ये वायु हमारे शरीर में प्राण के रूप में, श्वास प्रश्वास के रूप में संचरण करती है। इसको हमें बैलेंस करना है, क्योंकि जब भी आप चरक संहिता पढ़ेंगे, मुझे लंबा विषय हो जाता है कि मैं पढ़ा था उसमें, समय पीएचडी कर रहा था कभी 89 में, तब मैंने चरक संहिता को पढ़ा, तो वहां बताया कि जब भी कोई नकारात्मक भाव हमारे मन में आता है तो हमारे शरीर में रोगों की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और यदि वो नकारात्मक भाव लंबे समय तक बने रहते हैं तो वो विभिन्न प्रकार के रोग पैदा होते हैं, ऐसा पतंजलि बताते हैं। वो कहते हैं यदि ईर्ष्या बनी रहेगी लंबे समय तक तो कौन से रोग होंगे, यदि काम बना रहेगा लंबे समय तक तो कौन से रोग होंगे, यदि क्रोध बना रहेगा तो कौन से रोग होंगे। और जब मैंने चिंतन किया कि मन में नकारात्मक भाव आता है लेकिन रोगी हमारा शरीर होता है, तो इसकी प्रक्रिया तो पता चला कि भाई नकारात्मक भाव आता है, जाता है। आप कभी भी इसको आजमा कर देखना, ध्यान देकर देखना इसके ऊपर। जब तक आपके चित्त में सकारात्मक भाव रहेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग आपकी होगी, तब तक आपके श्वास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही कोई नकारात्मक भाव आपके मन के अंदर आया, या तो आपका श्वास तीव्र हो जाएगा या मंद हो जाएगा, या श्वास में जर्क आने लगेगा, झटका लगने लगेगा। तो तब कहा वैसे ही आपका जो श्वास डिसबैलेंस होते ही आपके रक्त में रासायनिक परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं, और जब रक्त में रासायनिक परिवर्तन होते हैं तो आगे की धातु में परिवर्तन होते हैं, और जब वो लक्षण शरीर के ऊपर प्रकट होते हैं तो हम उन्हें विभिन्न बीमारियों का नाम देते हैं। तो दूसरे स्टेप पर यदि हमें अपने आप से जुड़ना है तो अपने प्राण को हमें व्यवस्थित करना होगा। इसके लिए प्राणायाम बताया है, महर्षि पतंजलि ने भी बताया है, हठ योगियों ने भी बताया है, डीप ब्रीदिंग और योगी ब्रीदिंग आजकल के योगी भी बहुत करा रहे हैं। उन सभी माध्यमों से मुझे डीप ब्रीदिंग सबसे अच्छा लगता है। धीमा लंबा गहरा श्वास आप लेते रहे तो आपका प्राण अपने आप व्यवस्थित होने लगता है। ये दूसरे स्टेप पर हम अपने आप से जुड़ गए। अभी एक और स्टेप है तीसरा मोटे रूप में जो हमें अपने आप से जुड़ना है। अपने विचारों को हमें तारतम्यता प्रदान करनी है। हमारे विचारों में कोई भी तारतम्यता नहीं होती, हम कहीं भी एक विषय के ऊपर एकाग्र नहीं रह पाते। मन इतना चंचल है, निरंतर विषयों की ओर भागता रहता है, जिससे यथार्थ ज्ञान में बाधा पैदा होती है। विचार जब एक जगह ठहरते हैं, जब एकाग्रता होती है, तभी ज्ञान की प्राप्ति होती है। श्रवण मनन निधिध्यासन ज्ञान योग साधना कहती है, जो सुना जो पढ़ा उसके ऊपर चिंतन और मनन करें और फिर उसके ऊपर एकाग्रता लाएं, तब आपको ज्ञान पैदा होगा। और यदि हम आंखें बंद करके बैठे तो मुझे तो कई बार लगता है कि हम तो पागलों जैसी स्थिति है, कभी ये विचार आ गया, कभी वो विचार आ गया, कभी एक विषय पर विचार ठहरते ही नहीं है। और इनकी मैं आगे थोड़ी चर्चा करूंगा संक्षेप में आपके साथ में, कैसे इनको व्यवस्थित कर सकते हैं। तो जब हम आप 3 स्तर पर जुड़ गए अपने आप से, अब बात आती है किससे जुड़े, दूसरों से जुड़ने की बात। यहाँ 3 स्तर पर अपने आप से जुड़ने के पश्चात आती है, फिर अपने परिवार से जुड़े। आजकल आपने भौतिकवादी युग चल रहा है, देखा होगा परिवारों में कितना विघटन हो रहा है। माँ बाप की बच्चों के साथ में बातें नहीं हो पाती, पिता पुत्र की आपस में बात हुए लंबा समय हो जाता है। ये सारी चीजें विघटन का कारण बन रही, क्योंकि मेल मिलाप भी नहीं है। डाइनिंग टेबल पर भी यदि बैठते हैं तो कानों में वो लीड लगा लेते हैं बच्चे, वहां भी सब अपने फोन में लगे रहते हैं। एक ही कमरे के अंदर सब बैठे हुए, लेकिन सब अपने फोन में लगे हुए, किसी को किसी की चिंता नहीं है। यदि कोई पूछता भी है तो हाँ हूं करके टाल जाते हैं। तो जो परिवार में बिखराव हो रहा है, इससे जुड़े परिवार से, फिर गली मोहल्ले से जुड़े, उसकी समस्याओं को देखें, समाज से जुड़े, और समाज से जुड़ने के बाद में अपने प्रदेश से, राष्ट्र से जुड़े। और हमारी जो संस्कृति कहती है फिर वसुधैव कुटुंबकम, पूरे दुनिया से हम जुड़ सकते हैं। और इसके बाद में प्राणी मात्र से जुड़े, जो व्यास जी कहते हैं आत्मवत सर्वभूतेषु। और जब हमारा जो चित्त है वो सभी भूतों में, सभी प्राणियों में अपनी आत्मा के समान दर्शन करने लगता है, तो योग वहां से शुरू होता है। यहाँ आकर जो परिभाषाएं शास्त्रों में दी गई हैं, अब वो भी घटित हो सकती हैं, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप में योग करता गया हूँ, अपने आप से जुड़ा हूँ, अपने आसपास के परिवेश से जुड़ा हूँ, और फिर मैं जाकर परमपिता परमात्मा जो समग्र रूप है, सारा का सारा परमात्मा का जो हमें दिखाई देता है, ये परमात्मा का ही रूप है, ये पूरा ब्रह्मांड। ईशावास्य उपनिषद भी कहती है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत तो एक ही है, चेतना या ऊर्जा या परम चेतना जिसको आप कहते हैं, वो तो एक ही है। लेकिन वही चेतना, वही परम चेतना विभिन्न रूपों में हमें भाषित हो रही है।
अब जब अध्यात्म की बात करते हैं तो शरीर की बात मैंने संक्षेप में की, तो अध्यात्म क्या है? उसी चेतना को ढूंढने का, जानने का जब हम प्रयास करते हैं तो वही अध्यात्म कहलाता है, वही आध्यात्मिकता है। और जो व्यक्ति उस मार्ग पर चल पड़ता है वो धीरे धीरे परम चेतना को प्राप्त कर लेता है, पूर्ण आध्यात्मिक हो जाता है। और योग का इन दोनों चीजों के साथ में गहरा संबंध है, चाहे वो शारीरिक बीमारियां हैं, आज की जो समस्या चल रही है कोविड-19 की, चाहे वो है, या आपकी परम चेतना को प्राप्त की जो कामना है, इच्छा है, दोनों में योग की महत्वपूर्ण भूमिका है। पतंजलि ने पहले योग की परिभाषा दी, योगश्चित वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना योग है। लेकिन लक्ष्य क्या बताया? तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, अपने स्वरूप में स्थित होना। जो मैं चेतन तत्व हूं, मैं जो चेतन रूप हूं, अपने उस चेतन तत्व के रूप में अपने आप को पहचान लेना, जान लेना, ये लक्ष्य है। बिना योग के ये पूर्ण नहीं होता है। न शरीर बिना योग के ठीक हो सकता है और न बिना योग के। मैं तो ये कहा करता हूं अपने विद्यार्थियों को कि योग से ही ये सृष्टि पैदा हुई है, योग से ही ये सृष्टि चल रही है और योग के लिए ही चल रही है। यदि सांख्य दर्शन पढ़ा होगा तो पुरुष और प्रकृति के योग से सृष्टि का निर्माण होता है। और यहाँ संसार में कोई भी ऐसी क्रिया नहीं है जो बिना योग के संपन्न होती हो। मेरा बोलना भी है, वायु का स्वर यंत्रों के साथ में योग हो रहा है तो ये शब्द उत्पन्न हो रहे हैं। मेरे शब्दों का आपके स्वर्ण इंद्रिय के साथ में, कानों के साथ में योग हो रहा है तो आपको सुनाई दे रहा है। हर प्रकार एक एक क्रिया को आप देखिए बिना योग के कहीं संपादित नहीं हो रही। इसलिए श्री अरविंद ने बहुत अच्छा कहा था कि योग तो अपने आप हो रहा है, उसको उत्कृष्टता की ओर ले जाने की आवश्यकता है। ये सांसारिक योग है। सांसारिक योग स्थिर आनंद नहीं दे पाता। जो योग शास्त्रों में बताया है, जो ऋषियों ने बताया है, उस योग मार्ग पर चलकर आपको शाश्वत जो आपका स्वरूप है, हम आनंद रूप हैं। परमपिता परमात्मा को सच्चिदानंद कहा जाता है ना, और हमें भी उनका अंश बताया जाता है या उनके बेटे बेटी के समान बताया जाता है, या वेदांत कहता है कि तत्वमसि तू वही है, अर्थात हम भी आनंद रूप हैं। तो वो आनंद रूप हमें योग के मार्ग पर ही चलकर प्राप्त हो सकता है। मुझे उपनिषदों का जो एक चक्रों का कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा लगता है। जब मैं पढ़ाता हूँ उसकी थोड़ी चर्चा करके मैं अपनी वाणी को फिर विराम दूंगा, समझाऊंगा कि चेतना से हम परम चेतना तक कैसे पहुंच सकते हैं। वही परम चेतना हमारे इस शरीर में निवास करती है, उसी का अंश है। और वही चेतना जब नीचे की ओर बहती है तो हम बहिर्मुख होते हैं, संसार में होते हैं। चेतना का निवास हमारे शरीर में कहाँ बताया है? हमारे ऋषियों ने कहीं बाहर जाकर प्रयोग नहीं किया। हमारे यहाँ एक उक्ति आती है संस्कृत की, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे। जो इस शरीर में है वो संपूर्ण ब्रह्मांड में है, और जो संपूर्ण ब्रह्मांड में है वो इस शरीर में है। इसलिए ऋषियों ने, संतों ने, सूफियों ने, सबने इसी शरीर को अपनी प्रयोगशाला बनाकर पूरे ब्रह्मांड को जाना। जैसे महिलाएं जब घर में रसोई में दाल या चावल बनाती हैं और वो चमचे में थोड़े से दाने लेकर एक दाने को दबाकर देखकर पूरी हांडी के चावलों का और या दाल का अनुमान लगा लेती है क्या स्थिति है, उन्हें ज्ञान हो जाता है उसका। ठीक वैसे यदि शरीर को आपने जान लिया तो इस शरीर को जानने के पश्चात पूरे ब्रह्मांड को जानना आसान हो जाता है। आसानी से साधक जान लेता है उसको कैसे चले। तो 6 चक्रों की कल्पना की है, 7 चक्रों की इस शरीर में। आप सब जानते होंगे जो योग के विद्यार्थी हैं, मूलाधार से लेकर मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार जो परम चेतना का स्थान बताया है। शब्द एक ही है, अलग अलग हैं, बात एक ही है। यहाँ जो 7वां स्थान है, जो 7वां चक्र है, वो 7वां स्थान है परम चेतना का। इस्लाम में क्या कहते हैं? 7वें आसमान में खुदा रहता है। 7वां आसमान के बाहर भी हो सकता है, वहां तक हमारी पहुंच नहीं है। लेकिन ये जो यहाँ 7वां चक्र, ये वही 7वां आसमान है जो सूफियों ने देखा। और हमारे यहाँ सनातन में भी क्या कहा जाता है? 7वें लोक में, वैकुंठ में विष्णु का निवास है। अर्थात परम चेतना का स्थान जो है 7वें चक्र के ऊपर है। ये प्रतीकात्मक बातें बताई गई हैं। हमेशा हमारी संस्कृति प्रतीकात्मक रही है, जो पूजा पद्धतियां हमारी रही हैं। यदि हम प्रतीकों को ठीक से नहीं समझेंगे, देश काल परिस्थिति के अनुसार उनका अर्थ नहीं लेंगे, तो हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होता। देखिए, ऊर्जा का परम केंद्र ये 7वें चक्र पर है। लेकिन जब ऊर्जा नाड़ियों के माध्यम से नीचे बहती है तो नीचे के चक्रों की ओर गमन करती है।
और विशेषकर हमारी सबकी ऊर्जा स्वाधिष्ठान या मूलाधार चक्र पर ही बनी रहती है। इसलिए हम चाहकर भी अंतर्मुखी नहीं हो पाते। पतंजलि भी इसकी चर्चा करते हैं। यदि कभी मुझे मौका मिला, अच्छा लंबा व्याख्यान होने का समय मिला, तो उस समय बताऊंगा पतंजलि चक्रों की बात कहाँ कर रहे हैं। तो वो सारा का सारा हमारी ऊर्जा जब नीचे बहती है तो हम संसार की ओर बहते रहते हैं। इसी ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन की बात की है। चाहे वो वेद है, वेद ने कहा ऊर्ध्वरेतता बने, वीर्य का ऊर्ध्वगमन बने। चाहे एक भजनकार आपको कह रहा है राधा राधा बोलो चले आएंगे बिहारी, गलती कहाँ होती है? हम यहाँ राधा कोई लड़की का अर्थ ले लेते हैं और बिहारी कोई लड़के का अर्थ लेते हैं। यही गलती हो जाती है। ये आध्यात्मिक जगत है तो यहाँ लौकिक अर्थ, यहाँ हमें आध्यात्मिक अर्थ ही लेने। धारा कहते हैं, गंगा की धारा हिमालय से समुद्र की ओर जा रही है। अभी मैं गिलास से पानी गिराने लगूं तो पानी की धारा, और धारा शब्द का उल्टा कीजिए राधा, अर्थात ये जो ऊर्जा ऊपर से नीचे बह रही है, इस ऊर्जा को लगातार बार बार उल्टा करने का प्रयास करें, ऊर्ध्वगामी करें। और जब इस ऊर्जा को हम बार बार उल्टा करने का प्रयास करते हैं तो ये 60 चक्रों का भेदन करती हुई, हठ योग के ग्रंथों में, उपनिषदों में बहुत अच्छे से समझाया गया है, ये भेदन करती हुई ब्रह्मरंध्र में, सहस्रार में पहुंच जाती है जहां से चली थी। और जब यहाँ जो व्यष्टि चेतना है, जो मूलाधार में, जिसको कुंडलिनी आदि का नाम दे दिया गया है हठ योग के ग्रंथों में, जब वो मूलाधार में रुकी हुई चेतना जब ऊर्ध्वगमन करने लगती है और चक्रों का भेदन करते हुए ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाती है, अपने स्थान पर पहुंच जाती है, तो जो पतंजलि ने कहा है तद्दा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, वो अपने परम चेतन स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, वो स्थिति प्राप्त हो जाती है। अब इसका थोड़ा जो मैंने चिंतन किया है, पढ़ा शास्त्रों में, वो आपको बताऊंगा कौन कौन से चक्र की हम शुद्धि कैसे कर सकते हैं। चेतना का विकास करना है, जो आजकल बात हो रही है, मानवीय चेतना के विकास की बहुत सी विधियां हैं। हवन है, यज्ञ है, मंत्र जप है, बहुत सी जितनी भी अलग अलग मत संप्रदायों में किया, वो सारे के सारे चेतना के विकास की हैं। लेकिन उनमें कमी रह जाती है कि हम एक को पकड़कर बैठ जाते हैं। ये सारी समग्र साधनाएं हैं। महर्षि पतंजलि ने इसीलिए योग को इतना अच्छा व्यवस्थित रूप प्रदान किया कि उनके योग को हम राजयोग भी कहते हैं, कि अलग अलग जो वर्णन किया गया था योग का सॉरी, कहीं वो भक्ति योग के रूप में, कहीं कर्म योग के रूप में, कहीं ज्ञान योग के रूप में, कहीं दूसरे रूपों में हठ योग आदि के रूप में वर्णन किया गया था। पतंजलि ने उनको सबको समाहित कर दिया, इसीलिए उसको राजयोग का नाम दिया गया। और जो मैडम ने बताया था यम से लेकर समाधि तक, उसमें ये सारे योग समाहित हो जाते हैं। तो इन कहने का तात्पर्य है कि इन सब योग मार्गों की जब हम समग्रता के साथ में अपने जीवन में धारण करते हैं, तभी हमारी चेतना का विकास होता है। जो मूलाधार है वो स्थूल शरीर से संबंधित है। वैसे अलग अलग जो पंच तत्व हैं उनसे भी इनकी कल्पना की गई है, लेकिन यहाँ मैं स्थूल शरीर से इसका संबंध मानता हूँ, मूलाधार से। और स्थूल कर्म, शरीर क्या करता है? कर्म करता है। और कर्म को यदि आसक्त भाव से करेंगे तो बंधन में बंधेंगे, दुखी होंगे। तो जब भी आप कर्म करें, यदि आप गीता के अनासक्त भाव को अपने जीवन में ले आते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म तो मेरा अधिकार है लेकिन फल में मेरा अधिकार नहीं है, इस भाव को निरंतर साधते रहें। ये साधना किस चीज का मतलब है? जिसको आप निरंतर करते रहते हैं, तभी अभ्यास दृढ़ होता है, तभी फल देने योग्य होता है। जो पतंजलि कहते हैं, शतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। कोई भी अभ्यास तभी सफल होगा जब 3 बातें होंगी, लंबे समय तक निरंतर श्रद्धा पूर्वक विश्वास के साथ करेंगे, तभी वो फलित होगा। एक दिन में नहीं कि आज तो मैंने सोचा है अनासक्त भाव ले आता हूँ, कल फिर आसक्त हो जाऊंगा, नहीं। ये अनासक्त भाव निरंतर आपके जीवन में जब बनने लगता है तो आपकी चेतना परिष्कृत होने लगती है। अब उसका ऊर्ध्वगमन आरंभ हो जाता है। जो स्वाधिष्ठान है वो इंद्रियों का अधिष्ठान है। इंद्रियां, जो शक्ति इन हमारे शरीर के ऑर्गन्स के पीछे काम कर रही है, जो इंद्रियां, उनको नियंत्रित करना है। ये यहाँ भी अनासक्त भाव रखेंगे। वैसे बहुत से जो अभ्यासी हुए हैं उन्होंने तंत्र मार्ग का भी अनुसरण किया है और वो तंत्र योग को अपनाते हैं, लेकिन वो सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है। उसमें सामान्य व्यक्ति यदि तंत्र को अपनाना चाहता है तो अपना भी विनाश करता है और दूसरों का भी विनाश करता है। वो बहुत सूक्ष्म मार्ग है परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने का, लेकिन उसको जानने का अधिकारी वो होता है जो पूर्ण रूपेण जितेंद्रिय हो,
जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है वो तंत्र मार्ग को यदि अपनाएगा तो नीचे गिरेगा और दूसरे को भी नीचे गिराएगा। इसलिए यहाँ भी हमें अपनी इंद्रियों के नियंत्रण के लिए निरंतर अभ्यासक्त भाव से हमारे जो मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र हैं इनकी शुद्धि होनी आरंभ हो जाती है। जब निरंतर कर्म में रहता, मेरा कर्तव्य भावना है, मैं अपना जो कर्म कर रहा हूँ, मेरा परमपिता परमात्मा ने इस परिस्थिति में मुझे यहाँ बैठाया है, इस विभाग का संचालन करने के लिए मेरा कर्तव्य है, मुझे इससे मिले या ना मिले, जो परमपिता परमात्मा को देना है वो अपने आप मिलता रहेगा। जब ऐसा भाव साधक के मन में आ जाता है तो यहीं से साधना आरंभ हो जाती है, उसकी चेतना का उद्गमन शुरू हो जाता है। तीसरा चक्र मैंने बताया था मणिपुर, ये प्राण का स्थान है। और जैसे मैंने पहले ही चर्चा की थी आपसे, प्राण को आप व्यवस्थित करें हठ योग के मार्ग से, आप शुद्धि करें शरीर की, षटकर्मों का अभ्यास करें जो घेरन ऋषि ने सप्तांग योग बताया है। षटकर्म नाशोधनम च आसनेन भवेत् दृढ़म्, मुद्रा स्थिरता च प्रत्याहारेण धीरता, प्राणायाम लाघवम च ध्यानात् प्रत्यक्षात्मनि, समाधिना निर्लिप्तम च मुक्तिरेव संशयः। इस मार्ग पर चलते हुए शरीर को शोधन करें, उसको दृढ़ बनाएं, उसमें स्थिरता लाएं और फिर प्राणायाम के माध्यम से, डीप ब्रीदिंग आदि के माध्यम से, नाभि का स्थान प्राण बताया ना, प्राण जो नाभि है वो आपके प्राण को नियंत्रित करती है। आजकल हम लंबा गहरा श्वास लेना ही भूल गए हैं, हम छोटा सा श्वास लेते हैं, छोटा सा श्वास बाहर निकालते हैं, न उससे पूरी ऑक्सीजन मिल पाती है, न उससे पूरी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल पाती है। आप स्वयं आजमा कर देख सकते हैं, जितना आपका लंबा गहरा श्वास होगा उतना चित्त भी शांत होगा, मन भी शांत होगा और रोग भी दूर हो जाएंगे। एक ग्रंथ है हठ योग प्रदीपिका, जो योग के जानकार आप में से होंगे वो सब जानते हैं। उसमें 5वें उपदेश में स्वात्मा राम जी ने प्रत्येक रोग की चिकित्सा केवल डीप ब्रीथिंग से बताई है। केवल कुछ थोड़ा बहुत उन्हें बताया, जिसमें खीर खीर के भोजन के रूप में ग्रहण करके उसमें घृत डालकर सेवन करने के पश्चात कुंभक आदि बताया है, बाकी में सारी डीप ब्रीथिंग बताई है। अर्थात यदि मणिपुर चक्र की शुद्धि के लिए आपको प्राणायाम का अभ्यास करना होगा, प्राण को दीर्घ बनाना होगा, तो इतना और ऊर्ध्वगामी होती जाएगी। जो आपका अनाहत चक्र है वो हृदय स्थान बताया है, ये भाव का स्थान है। देखिए भाव सबसे पहले है, जैसे हमारे भाव होते हैं वैसे ही हमारे विचार होते हैं, और जैसे विचार होते हैं वैसे ही हमारे कर्म होते हैं। तो हम कहाँ बदल सकते हैं? इनमें भाव के स्थान पर बदल सकते हैं। जो पतंजलि भी कहते हैं कि यदि कोई नकारात्मक भाव आपके मन में आता है तो प्रतिपक्ष की भावना करें, यदि घृणा का भाव मन में आया है तो प्रेम की भावना को मन में उस समय चिंतन करें, तो धीरे धीरे वो घृणा का भाव दब जाएगा। अर्थात भावों को परिवर्तित करना है आपको, और ये भावों को भक्ति योग के माध्यम से, जो पतंजलि ने ईश्वर प्रणिधान बताया है उसके माध्यम से बड़ी आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। जिस व्यक्ति के अंदर भक्ति भाव आ जाता है उसके अंदर सेवा का भाव आ जाता है, और सेवा हमारे चित्त को निर्मल करती है, आप सब जानते हैं। और जैसे जैसे चित्त निर्मल होता है, क्योंकि तो शरीर और मन दोनों एक सिक्के के दो पहलू के समान हैं, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, और मन सूक्ष्म है, उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। शरीर का भी मन के ऊपर पड़ता है, लेकिन मन का शरीर के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे ही मन निर्मल होना शुरू हो जाता है तो आपके शरीर की बीमारियां भी ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। पतंजलि को पढ़िए, जहां पतंजलि चित्त के विक्षेप बताते हैं वहां बीमारियों को सबसे पहले गिनाते हैं, और वहां वो कहते हैं केवल चित्त की निर्मलता से आपकी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। तो यहाँ आकर आपने यदि भक्ति भाव अपने मन में लाते हैं तो आपका अनाहत चक्र तक आपकी ऊर्जा शुद्ध हो जाती है। विशुद्धि चक्र, अब बारी आती है विचार या मन की। यहाँ विचार और मन की स्थिति है, और ये इसकी शुद्धि होगी ज्ञान के माध्यम से। और ज्ञान जो मैंने पहले बताया आपको, उसके लिए आपको आहार की शुद्धि नितांत आवश्यक है। वैचारिक शुद्धि जो पतंजलि नियम के अंतर्गत शौच की बात करते हैं, सबसे पहले जो बाह्य शुद्धि है, जो आभ्यंतर शुद्धि है, वैचारिक शुद्धि है, वो यदि आपके जीवन में होगी तो आपकी चेतना का और विकास हो जाएगा, आपकी चेतना और ऊर्ध्वगामी हो जाएगी। और यदि और अब निरंतर इसका अभ्यास करते रहते हैं तो यहाँ जो आज्ञा चक्र में जो अस्मिता का स्थान है, अस्मिता ही मूल कारण है हमारे बंधन का। अस्मिता क्या है? दृग दर्शन सख्योर एकात्म तेवा अस्मिता। पतंजलि कहते हैं जहां देखने वाला और देखने का साधन दोनों अलग अलग अनुभूत नहीं होते, बल्कि एक अनुभूत होने लगते हैं, उसी को अस्मिता कहते हैं। जहां जो चेतन पुरुष था वो जैसे ही चित्त के संपर्क में आता है तो अपने स्वरूप को भूल जाता है,
वो शुद्ध बुद्ध मुक्त है, लेकिन जो त्रिगुणात्मक चित्त में घटित होता है वो उसको अपने में आरोपित करने लगता है, और जो जड़ चित्त था वो अपने आप को चेतन मानकर चेतन जैसा व्यवहार करने लगता है। इसी को अस्मिता कहते हैं। ये ज्ञान के माध्यम से ही अस्मिता भंग होती है। यहाँ काम करता है ध्यान योग। ध्यान की चर्चा जो मैडम कर रही थी, और ध्यान का हम प्रयोग तो बहुत करते हैं ध्यान शब्द का, लेकिन ध्यान को कभी जीवन में धारण नहीं करते। ध्यान जहां आप हैं वहां पूरे के पूरे हों। हम जहां बहुत से हम अपने घर में भी रहते हैं, यदि अचानक हमसे कोई पूछ ले कितने दरवाजे कितनी खिड़कियां हैं, लेकिन हमने कभी ध्यान से देखा ही नहीं, कभी चिंतन और मनन ही नहीं किया। जिस कॉलेज में रोज आते हैं, जिस कमरे में रोज बैठते हैं, उसकी क्या स्थिति है कभी ध्यान से देखा ही नहीं, क्योंकि कभी वहां पूरे होते ही नहीं है। वहां बैठे हुए लेकिन विचार कहीं और चल रहे हैं, खा रहे हैं, नहा रहे हैं, विचार कहीं और है, हम हैं ही नहीं वहां। यदि हम पूरे हो जाए, जो विषय है वही हम और वही रह जाएं, वो ध्यान फिर समाधि में परिवर्तित हो जाता है। जो पतंजलि कहते हैं कि तदेवार्थ मात्र निर्भाषम स्वरूप शून्यमेव समाधि। ध्यान ही समाधि में कब परिणत होगा? जब वहां जो ध्यान करने वाला है वो अपने आप को भूल जाता है, उस विषय में ही खो जाता है। और देखिए, केवल हमें ऋषि मुनि ही नहीं, यदि आप लेने वाले हो तो हर जगह से ले सकते हैं। आपको हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से बताता है। जैसे मैंने भजन की 2 लाइनें बोली थी, मुझे एक गीत की 2 लाइनें भी इस ध्यान के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही अच्छी लगती हैं। एक दूसरे में खो जाने का भाव वहां है। वो कहते हैं, आ बैठ मेरे पास, तुझे देखता रहूं, न तू कुछ कहे न मैं कुछ कहूं। अर्थात एक दूसरे में ऐसा खो जाए, यही तो ध्यान है। अब मैं जिस विषय के ऊपर ध्यान कर रहा हूं, यदि मैं साधक हूं, उसमें खो जाऊं तो समाधि की स्थिति को प्राप्त कर लूंगा। और यदि मैं संसार में हूं, जो काम मैं कर रहा हूं, यदि वहां मैं ध्यानस्थ हूं, तो अपने काम को पूरी परफेक्टनेस के साथ में करूंगा, पूरी सफलता के साथ में करूंगा। ये ध्यान यदि जीवन में आ जाए तो बहुत कल्याण हो जाता है। यहाँ ध्यान जब प्रगाढ़ हो जाता है तो साधक विवेक ख्याति को प्राप्त कर लेता है, जो परम ज्ञान होता है, और उस परम ज्ञान से इस अस्मिता को जान लेता है। ये तो सब कुछ त्रिगुणात्मक प्रकृति में घटित हो रहा है, मैं तो शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ। चित्त पूर्ण रूप में निर्मल हो जाता है, और चित्त के निर्मल होते ही शरीर भी निर्मल हो जाता है। और आगे जब यहाँ सहस्रार में फिर आगे चेतना पहुंच जाती है। यहाँ आकर कब पहुंचेगी? जब इस विवेक ख्याति से भी पतंजलि कहते हैं परम वैराग्य हो जाएगा, इस त्रिगुणात्मक चित्त से भी वैराग्य हो जाएगा। तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वै तृष्णम। अब साधक को दिखता है इस ज्ञान से ही क्या लेना। हम सोचते हैं, देखिए मैंने जीवन में देखा है कि जितने बड़े ज्ञानी है उतने बड़े अहंकारी होते हैं, क्योंकि उस ज्ञान से आसक्ति रहती है, लगाव रहता है। मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतनी डिग्रियां मेरे पास में है, उस अहंकार में ही विकृति आ जाती है। अरे इस ज्ञान से मुझे क्या लेना है? ठीक है, इस ज्ञान से मैंने जान लिया, इन पदार्थों को जान लिया, और यदि यहाँ आकर समाधि की स्थिति में अपने आप को जान लिया तो इतना पर्याप्त है। अब मुझे इस ज्ञान से क्या लगाओ? अब इस ये ज्ञान से मेरा क्या होना है? जो होना था वो हो गया, अब तो कुछ शेष नहीं रहा। जब ऐसा भाव आ जाता है तो तब साधक परम चेतना में अपने रूप में पहुंच जाता है, और यहाँ आकर आध्यात्मिकता पूर्ण हो जाती है। समय कम था, लेकिन मैंने फिर भी कम शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। आधा घंटा मैडम ने कहा था, 1 मिनट शायद ऊपर हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपके इस वक्तव्य के लिए। और बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा ये सेशन हमारे लिए। और मैं निरंतर देख रही थी कि पार्टिसिपेंट्स अपने चैट मैसेजेस के थ्रू भी हमारे साथ मैसेज शेयर कर रहे थे। इट वाज रियली अ लाइटनिंग सेशन। और हम ये सर आधे घंटे का लेक्चर नहीं था, ये आधे घंटे को मल्टीप्लाई बाय कई टाइम्स करना पड़ेगा हमें, क्योंकि आपने ऐसी स्पीड से और इतना सारा ज्ञान हमारे साथ शेयर किया है, और सबने बहुत ध्यान से इसको सुना है। ध्यान, जो आप ध्यान कह रहे थे, माइंडफुलनेस, वो माइंडफुलनेस आज थी सारे पार्टिसिपेंट्स में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, धन्यवाद मैडम। ठीक है मैडम, मैं लैपटॉप। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मैम। आज हमारे बीच ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे डीएवी मैनेजिंग कमेटी से भी हमारे सीनियर मेंबर्स, ऑफिस बियरर्स ने हमें आशीर्वाद देने के लिए इस वेबिनार को ज्वाइन करा है। हमारे साथ माननीय श्री सत्यपाल आर्य जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ इस सेशन में। और सर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं इस डीएवी कॉलेज के कार्यक्रम में। आपकी छत्र छाया में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सर मैं 2 मिनट आपसे विनती करूंगी कि आप आशीर्वचनों द्वारा आज हम सबको लाभान्वित करें। श्री सत्यपाल आर्य जी।
हेलो 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 नमस्कार सर। सर नमस्कार। थोड़ा सा फोन को आप पास कर लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है जी मेरी? हाँ हेलो जी सर, आ रही है सर। जी सर। नमस्कार मैं सर, हेलो बहुत बहुत स्वागत है सर। एंड सॉरी शुरू में आप ज्वाइन नहीं कर पाए। आज इस वेबिनार के लिए काफी एक्साइटमेंट थी, बहुत से लोग बाहर से भी, और लगभग मैं आपसे शेयर करूं तो 1000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्टर करा। तो स्टार्ट भी हम थोड़ा लेट कर पाए। हम वेट कर रहे थे कि आप जरूर ज्वाइन करेंगे, और हमने थोड़ा मेंबर्स की जगह भी छोड़ी थी 100 की, लेकिन फिर आप नहीं ज्वाइन कर पाए। उसके लिए माफी मांगती हूँ, सॉरी। चलो नहीं, इसमें माफी मेरी कोई जो है ना, इसको आपकी टेक्निकली आवाज इतनी सर, आप जरा इतनी आवाज जान। थोड़ा सा ऊंचे। मैं आदरणीय डॉक्टर साहब का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता। आज जो योग पर आपने चर्चा की, यद्यपि मैं पूरा सुन नहीं पाया, अंत में जो है ना कुछ शब्द सुन पाया हूँ। ध्यान के विषय में, योगाधार ब्रह्मधार के बारे में जब चर्चा कर रहे थे, तो ये विषय है जिसकी मानवता को आवश्यकता है। आज का मानव अशांत है, परेशान है, व्याकुल है, दुखी है। उस दुख को दूर करने का केवल जो है साधन महर्षि पतंजलि ने दिया योग दर्शन में। योग दर्शन ऐसा विषय, योगा चित्त वृत्ति, जिसमें आदमी जब तक अपनी चित्त की वृत्तियों का नियंत्रण नहीं करता, उच्छृंखलता वृत्तियों में बनी रहती है, तब तक वो परेशान ही रहता है। और इस परेशानी को जब तक दूर करने के लिए अभ्यास वैराग्याभ्याम, जब तक वो अपने आप का अभ्यास और वैराग्य से नहीं जोड़ता, तब तक काम करने में असमर्थ है। तब तक अपने जीवन के जो मूल्य हैं, जीवन मूल्य, वहां तक पहुंच नहीं सकता। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं डॉक्टर सविता भगत का, जिन्होंने हमारे सभी जो है योग प्रेमियों को, जीवन के रुचि रखने वाले लोगों को जोड़ने का प्रयास किया है। उसके साथ में से प्रिया कपूर और दूसरे जितने भी आयोजक हैं, उन सब का स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं ऐसे इस प्रकार के वेबिनार होते रहेंगे, और ये छात्रों को, अध्यापकों को और सभी को जो है कुछ ना कुछ लाभ देने की प्रक्रिया में लाएंगे, और समाज जो है समरसता की ओर बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर अभी हमारे एक स्पीकर हैं, आप उनको सुनिए। डॉक्टर सचिन हाँ, कुमार हैं ठीक। पतंजलि हाँ, योग पीठ से। हाँ, आप उनका जरूर मैं सुनूंगा जी। नमस्कार। नमस्ते। सबसे पहले मैं बहुत ही आदरणीय श्री सत्यपाल आर्य जी को प्रणाम करूंगा कि वो हमारे पिता तुल्य हैं और बहुत उम्र में भी बड़े हैं, अनुभव में बहुत बड़े हैं। डॉक्टर सविता जी, आप भी हमसे बहुत एक्सपीरियंस में बड़े हैं, उम्र में भी काफी बड़े हैं। और उमेश जी, मनोज जी और पूरा डीएवी का जो टेक्निकल टीम है, मैं उसको सबसे पहले उनको धन्यवाद देता हूं और प्रणाम करता हूं। सभी पार्टिसिपेंट्स जो जुड़े हुए हैं, सभी का बहुत बहुत आभार। सभी बहुत धैर्य के साथ सभी स्पीकर्स को सुन रहे हैं, और हमारे गुरु जिसके माध्यम से, जिनकी ऊर्जा से हम यहाँ हैं, हम ये लेक्चर देने के लिए अपने अंदर ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं, ऐसे गुरुओं के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। मैं पतंजलि योगपीठ में एक विभागाध्यक्ष के पद पे हूँ, और योग एवं षटकर्म और नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट से हम पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। यहाँ पे लगभग 20 साल से मैं यहाँ पे कार्य कर रहा हूँ पतंजलि योगपीठ में, पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य श्री के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद के नीचे। मेरा जो टॉपिक है, उमेश जी ने जो मुझे बताया था, उस टॉपिक के अनुसार आजकल जो डिजास्टर कह लीजिए, आपसे एक महामारी कह लीजिए, उसके द्वारा जो मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल जो समस्याएं हो रही हैं, उनके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे, उनके ऊपर हम बात करेंगे। मैं जब ये चर्चा आपसे कर रहा हूं, तभी एक पेशेंट जो है मेरे से डिस्चार्ज लेके गए हैं। वो कोविड की वजह से इतने ज्यादा परेशान, इतने ज्यादा विचलित हो गए हैं कि वो उस डिस्टर्बेंस को टॉलरेट करने में असमर्थ हैं, और उनको इमीडिएटली एलोपैथी मेडिसिन की आवश्यकता है। इसलिए वो डिस्चार्ज हो गए यहाँ से। अभी ये 2 मिनट पहले गए हैं, उनको मैंने डिस्चार्ज किया है अभी।
मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इस महामारी ने हमारे जीवन को इतना अस्त व्यस्त कर दिया है कि व्यक्ति ये सोचने में असमर्थ है कि उसका फ्यूचर क्या होगा, उसका भविष्य क्या होगा, वो जीवित रहेगा या नहीं रहेगा, रहेगा तो किस कंडीशन में रहेगा। इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड कोविड-19, ये वैसे मेरा टॉपिक है, लेकिन जो वेबिनार का जो टॉपिक है वो स्ट्रेंथनिंग है फिजिकली एंड स्पिरिचुअली थ्रू योगा प्रैक्टिस और योगा थेरेपी। इसमें दोनों ही चीजें, तीनों ही चीजें कंसिडर होती हैं, फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली, क्योंकि ये तीनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं। अगर फिजिक ठीक है तो माइंड ठीक होगा, माइंड ठीक है तो फिजिक ठीक होगा। अगर ये दोनों ठीक हैं तो ही हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं, उस रास्ते के ऊपर चल सकते हैं। अदरवाइज कोई चांस नहीं है कि हम आध्यात्मिक बनने की कोशिश करें अगर हमारा मन या हमारा शरीर व्याधिग्रस्त बीमार है। सबसे पहले हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझने का प्रयास करेंगे। वैसे सभी प्रबुद्ध जन बैठे हुए हैं, सभी विद्वत जन बैठे हुए हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र के बारे में जानते भी होंगे। लेकिन जब से कोरोना महामारी आई है तब से लोगों का श्वसन तंत्र के बारे में रुचि बढ़ गई है, उसको जानने की जिज्ञासा बढ़ गई कि श्वसन तंत्र है क्या, जिसके माध्यम से संपूर्ण शरीर और न केवल शरीर बल्कि मन भी व्यथित है और डिस्टर्ब है, परेशान है। इतने लोगों ने अपनी जान से हाथ धो दिया है, कितने लोगों को फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजरना पड़ रहा है, कितने लोगों का माइंड अनस्टेबल हो गया है, पूरी तरह से वो पागल हो चुके हैं। बहुत पेशेंट्स के कॉल हमारे पास आ रहे हैं, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द नॉस्ट्रिल। हमारी नाक के जो दो स्वर हैं, चंद्र स्वर और सूर्य स्वर, यहां से श्वसन तंत्र शुरू होता है। इसके बाद नजल कॉन्कीज और जो म्यूकस मेम्ब्रान्स हैं नॉस्ट्रिल के अंदर, वहां से होते हुए ट्रैकिया, लैरिंग्स, फेरिंग्स। और ट्रैकिया को दो पार्ट में अगर आप डिवाइड कर देंगे विंड पाइप को, तो ब्रोंकीज कहलाती हैं। वो ब्रोंकीज जब और छोटे सूक्ष्म कणों में विभाजित हो जाती हैं तो सेकेंडरी ब्रोंकीज कहलाती है। फिर वो सेकेंडरी ब्रोंकीज जब और छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाती है तो ब्रोंक्यूल्स कहलाती हैं। और ये ब्रोंक्यूल्स खुलते हैं एल्वलाइज के अंदर, यानी नॉस्ट्रिल टू एल्वलाइज। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक है। पूरा ट्रैक क्या है? फ्रॉम नॉस्ट्रिल टू एल्वलाइज यानी वायुकोश, यहां तक का पूरा ट्रैक है। इसी ट्रैक को इन्फेक्टेड करता है ये जो कोरोना का वायरस है, जिसको कोविड-19 कहा गया है। ये करता है आपके पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्टेड। अब समझना हमें यह है कि कोरोना वायरस को क्या हम लंग तक, फेफड़ों तक जाने से पहले ही रोक सकते हैं? क्योंकि आज जितने भी वेबिनार्स हो रहे हैं, मेरे बीच में 3-4 लेक्चर तो दे चुका हूं, तो सारे के सारे कोविड के ऊपर ही फोकस करते हैं कि क्योंकि व्यक्ति वो जानना चाहता है जो करंट सिचुएशन है, जो करंट प्रॉब्लम्स हो रही है, उसके बारे में वो जानने का इच्छुक है, उसके बारे में वो उसका सॉल्यूशन जानना चाहता है कि योग या अल्टरनेटिव थेरेपी इसमें क्या कर सकती है, किस तरह का रोल प्ले कर सकती है। और आज के टाइम में तो आपने देखा ही होगा, पीछे जो बहस छिड़ी है एलोपैथी और जो आयुर्वेद और योग के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के अंदर, इसने तो हमारे अस्तित्व इन्होंने तो हमारे अस्तित्व के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया था। लेकिन एनीवे वो होगा नहीं। तो लेकिन सभी व्यक्तियों के अंदर ये जिज्ञासा है कि योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी के माध्यम से किस तरह से कोरोना वायरस को हम इरेज कर सकते हैं, किस तरह से इसकी रोकथाम कर सकते हैं, किस तरह से हमारे लंग्स को इन्फेक्टेड होने से बचा सकते हैं। तो जिस समय कोरोना का वायरस नॉस्ट्रिल के अंदर एंटर करता है, उसी समय व्यक्ति को स्नीजिंग और फीवरिश एंड फटीग, ये 3 चीजें फील होने लगती हैं। अगर ऐसी कंडीशन उसकी है तो उसको अवेयर होना चाहिए और उसको तुरंत अपना टेस्ट, अपनी इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए, RT-PCR कराना चाहिए। अगर RT-PCR में नेगेटिव आता है तो उसको अपना CT स्कैन कराना चाहिए, लंग का CT स्कैन कराना चाहिए। उसके माध्यम से उसकी सीवियरिटी पता चल जाती है कि क्या कोरोना वायरस नॉस्ट्रिल से सीधा फेफड़ों में चला गया है या नहीं गया, या उसने फेफड़ों को इन्फेक्टेड किया है या नहीं किया है। जिस तरह से हमारी नॉस्ट्रिल के अंदर जब कोरोना वायरस एंटर करता है और ये 3 लक्षण प्रकट होते हैं, उसी तरह से लंग के लक्षण भी प्रकट होते हैं। जब फेफड़ों के अंदर कोरोना वायरस एंटर करता है
तो सूखा कफ यानी ड्राई कफ, ये समस्या पैदा होने लगती है। कभी भी हमें कफ बाहर नहीं आएगा अगर कोरोना का हमला हुआ है, अगर कोरोना ने अटैक किया है तो। इसमें जब नॉस्ट्रिल के अंदर वो कोरोना वायरस स्टे कर गया है तो एक लक्षण और सबसे बड़ा प्रकट होता है, वो है स्मेल का लॉस हो जाना। मेडिकल रिसर्च कहती है कि स्मेल अगर आपकी लॉस हो गई है तो आप ये समझिए कि आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रहा है और बहुत स्ट्रांगली पूरा इम्यून सिस्टम उसको मारने के लिए, उसको डेड करने के लिए लग गया है। मतलब अगर स्मेल चला गया है तो समझिए कि हमारा पूरा बॉडी कार्य कर रहा है बहुत अच्छी तरह से, पूरा इम्यून सिस्टम उसके ऊपर लगा हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि वहीं वो वायरस डेड हो जाता है नॉस्ट्रिल के अंदर ही, और वो लंग तक जाता ही नहीं। यह कहानी लगभग 80-85% केसों में, 80 to 85% केसों में पाई जाती है और पाई जा रही है। हम जो पैनिक हो रहे हैं वो 5% लोगों की वजह से हो रहे हैं। केवल 5% लोगों को सीटी सीवियरिटी 12 से 14 से ऊपर जा रही है। ये सीटी सीवियरिटी की वजह से उनको हॉस्पिटलाइज होने की कंडीशन होती है, जिसकी वजह से जो हमें दिखाया जाता है न्यूज के माध्यम से, उससे हम बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे हैं। और उस पैनिक सिचुएशन की वजह से हमारी ऑक्सीजन लेवल स्वतः नेचुरली ही डाउन चला जाता है। ये एक बॉडी का फिनोमिना है कि अगर हम स्ट्रेस में, अगर हम एंजाइटी में होते हैं तो हमारा ऑक्सीजन लेवल नेचुरली डाउन चला जाता है। तो हम भय से ज्यादा परेशान हैं, बीमारी से नहीं है। बीमारी इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं है जितना इसको प्रेजेंट किया जा रहा है। तो नॉस्ट्रिल के अंदर अगर वायरस है अभी तो उसको मारने के लिए हमारा पूरा इम्यून सिस्टम कार्य कर रहा है। और ये एक मैं आपको बॉडी का नेचुरल फिनोमेना बता रहा हूँ। उसकी हेल्प कैसे करेंगे शरीर की, योग और नेचुरोपैथी के माध्यम से, उस पर हम आएंगे भी। फिर अगर वायरस लंग्स में चला गया है तो लंग्स में पहुंचते ही वायरस ने लंग्स के अंदर पैचेस बनाने शुरू कर दिए। जो लंग का जो सॉफ्ट टिश्यू है उसके ऊपर उसने अटैक किया और वहां इन्फ्लामेटरी जो पोजीशन है, जो कंडीशन है, वो क्रिएट कर दी गई है और लंग के अंदर पैचेस बनने शुरू हो गए। जब लंग के अंदर पैचेस बनने शुरू होते हैं, यहाँ पे भी हमारा इम्यून सिस्टम फाइट करता है, यहाँ पे भी हमारा इम्यून सिस्टम उनके साथ लड़ता है, हमारी WBC उसके साथ फाइट करती है। और यहां जब वो फाइट करती है तो वायरस और WBC के बीच में जो लड़ाई हो रही है, जो फाइट हो रही है, उस फाइट में हमारे अच्छे सेल्स भी डैमेज हो जाते हैं। उस फाइट में क्या होता है, हमारे अच्छे सेल भी डैमेज हो जाते हैं। और यहां इस डैमेज, ये जो वेस्टेज है, ये काहे में कन्वर्ट होती है? ये इस वेस्टेज की वजह से जो समस्या पैदा हो रही है वो है साइटोकाइन। जो साइटोकाइन बनता है, साइटोकाइन एक तरह का प्रोटीन है और ये प्रोटीन पैदा होता है WBC और वायरस के बीच में जो फाइट हुई है उसकी वजह से जो सेल डेड हुए हैं, उन डेड सेल्स को कहते हैं साइटोकाइंस। यह साइटोकाइंस क्या करता है, फेफड़ों को फिल करना शुरू करता है। इसकी मात्रा बढ़ती जाती है, जैसे जैसे WBC वायरस के साथ फाइट करती है वैसे वैसे फेफड़ों में साइटोकाइन बढ़ता जाता है और लंग हेजी होने लगते हैं। जब जैसे जैसे लंग हेजी होने लगते हैं वैसे वैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम डाउन जाने लगता है, यानी हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, ऑक्सीजन की कमी हमें फील होने लगती है, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। इस कंडीशन को सीवियर कंडीशन कहते हैं और इस कंडीशन में ही हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत होती है। यही वो कंडीशन है जब पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। एक और टेस्ट के बारे में बताता हूं, साइटोकाइन टेस्ट कराया जाता है पेशेंट का। दूसरा एक टेस्ट होता है डी डाइमर। डी डाइमर टेस्ट वो होता है जिसमें ब्लड की थिकनेस पता चलती है, ब्लड कितना थिक है, ब्लड की थिन है या थिक है ब्लड। जब ब्लड के अंदर एक्स्ट्रा स्टेरॉइड की वजह से क्लोट बनने लगता है तो डी डाइमर, ये भी एक तरह का प्रोटीन है, ये बढ़ने लगता है। तो डी डाइमर टेस्ट कराया जाता है ब्लड के माध्यम से। डी डाइमर टेस्ट अगर ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि बॉडी के अंदर क्लॉटिंग शुरू हो चुकी है। तो वी हैव टू बी अवेयर एट दैट कंडीशन and we have to start blood thinner immediately. This is also a condition where you can go through allopathic therapy or hospital. So you have to admit, you have to search, you have to find a hospital at that time. D-dimer अगर आपका बढ़ा हुआ है तो अब एक चीज और आपको देखने को मिल रही होगी इस कंडीशन में, फेफड़ों के साथ साथ हार्ट अटैक भी हो रहे हैं।
फेफड़ों की रेस्पिरेशन के साथ साथ, चेस्ट में पेन के साथ साथ आपने देखा होगा बहुत सारे पेशेंट कोरोना से वापस आ गए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेशेंट कोरोना से वापस आए, ठीक हो गए, लेकिन अचानक दूसरे तीसरे दिन में उनको हार्ट अटैक हुआ और पेशेंट चल बसा, पेशेंट नहीं रहा। ये क्यों हो रहा है? इसके पीछे जो कारण है वो है लंग का, फेफड़ों का स्टिफनेस। फेफड़ों की स्टिफनेस की वजह से हार्ट का जो राइट पार्ट है, जो फेफड़ों को अशुद्ध रक्त देता है, जो फेफड़ों को अशुद्ध यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है, उसको उस प्रोसेस में बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है। हार्ट को वो अशुद्ध रक्त फेफड़ों तक देने में बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है, क्योंकि फेफड़े हो गए स्टिफ। पैचेस की वजह से, इन्फ्लामेटरी जो सिचुएशन हुई है उसकी वजह से लंग हो गया है स्टिफ यानी कड़ा। और जब किसी कड़ी चीज को आप प्रेशर देते हैं या किसी कड़ी चीज को आप धक्का देते हैं तो आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है एक सॉफ्ट टिश्यू की अपेक्षा, सॉफ्ट यानी मुलायम टिश्यू की अपेक्षा। तो हार्ट जब अशुद्ध रक्त फेफड़े को देता है तो उसको वो देने में बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। इसका कारण, इसका रिजल्ट होता है, इसका परिणाम होता है राइट हार्ट फेलियर यानी दाहिना हार्ट का फेलियर। इसीलिए ये केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने अपने शरीर को दवाइयों का मेडिकल स्टोर बना दिया और अननेसेसरी मेडिसिन को हमने शरीर के अंदर बुरी तरह से इनटेक किया है। चाहे वो स्टेरॉइड्स हैं, चाहे वो एंटीबायोटिक्स हैं, चाहे वो इंजेक्ट किए गए हों, वो सारी, मैं यहाँ पे किसी पर्टिकुलर मेडिसिन का नाम नहीं लेता क्योंकि कुछ मेडिसिन लाइफ सेविंग भी होती हैं, तो वो बहुत जरूरी होती है देने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमारा हार्ट का जो कार्य है, वो जो फंक्शन है वो प्रॉपर है या नहीं है। हम क्या करते हैं कि ओके कोरोना नेगेटिव हो गया है तो हम लापरवाह हो जाते हैं, और उस कंडीशन में क्या होता है कि हृदय के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, हम उससे हट जाते हैं, और रिजल्ट होता है राइट हार्ट फेलियर। ये पूरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है जो मैं आपको बता रहा हूं, केवल रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, पूरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है। इसमें पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है, पूरा आपका कार्डियो सिस्टम आता है, और पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम आता है, ब्लड सर्कुलेशन। तो ये पूरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है जिसके जो कोरोना वायरस से या किसी तरह के हैवी डोज से प्रभावित हो रहा है बुरी तरह से, और हम उसको बिल्कुल भी पहचान नहीं पा रहे हैं। हम फिजिकली स्ट्रेंथनिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन फिजिकली स्ट्रेंथनिंग में हम जितने भी इस पैनल पे जुड़े हुए अभी हमारे साथ हमारे एक्सपीरियंस्ड महानुभव हैं, और कुछ मेरे से छोटे भी हो सकते हैं ऑफ कोर्स, वो कितने व्यक्ति हैं जो ईमानदारी से योग को फॉलो करते हैं, वो अच्छी तरह से अपने अंदर झांक के देखें। मेरा ये कहना है कि अगर हम योग और नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग जीवन को जिए तो कोरोना नहीं, कितना भी बड़ा वायरस हो, ये हमारी इम्यून सिस्टम को थोड़ा बहुत डिस्टर्ब तो कर सकता है, लेकिन हमें हॉस्पिटलाइज नहीं कर सकता। ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, इसमें बिल्कुल भी ये किसी तरह का अतिशयोक्ति नहीं है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं खुद कोविड पेशेंट्स के साथ रहा हूं 1 महीना, और 4 घंटे डेली उनको मैंने योगाभ्यास कराया। 4 घंटे पीपीई किट पहन के 4 घंटे हमने डेली उनको योगाभ्यास कराया। कोई अंदर बैठ के कुछ भी बोलते, लेकिन जब आप सामने देखते हो ऐसे पेशेंट्स को और उनको खुद कराते हो अभ्यास, तो आपको पता चलता है कि इसकी इंटेंसिटी क्या है और किस तरह से आप उस पेशेंट को डील कर सकते हो। तो मैं आपको कहता हूं कि अगर हम पहले से ही इन अभ्यासों को अडॉप्ट कर लें तो जो आयुर्वेद का प्रयोजन है, स्वास्थ्य स्वस्थ रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, तो ये सिद्ध होता है कि स्वस्थ शरीर की रक्षा करना और जो विकार है, जो व्याधियां हैं, उनका शमन करना। योग भी, उपनिषद भी कह रहा है, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीर। तो अगर हम योग को अपने जीवन में धारण करते हैं, कर लेते हैं, तो न तस्य रोगो, कोई रोग नहीं सताता। न तस्य रोगो न जरा, बुढ़ापे के जो लक्षण है, बुढ़ापे में आने वाली जो समस्याएं हैं, उनसे हम परेशान नहीं हो सकते, और मृत्यु के भय से भी मुक्त हो जाते हैं। तो इसको लेकिन अडॉप्ट करना होता है, जीवन में अडॉप्ट करना होता है। अभी हमने पोस्ट कोविड हेल्थ रिजल्ट जो है, यानी
कोरोना के बाद होने वाले जो कोरोना जिनको हो चुका है, वो कोरोना से मुक्त हो चुके हैं, उनके शरीर में जो साइड इफेक्ट हो रहे हैं, उसके लिए हमने रिहैबिलिटेशन सेंटर डेवलप किया है पतंजलि योगपीठ के अंदर। हम ऐसे पेशेंट्स को अब ले रहे हैं, लेकिन मैंने ये देखा कि ऐसे पेशेंट्स को मेंटली बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है, मतलब वो मानसिक रूप से इतने परेशान है, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि वो जीवित हैं या वो फ्यूचर में जीवित रहेंगे, क्योंकि उनको और एक भय सता रहा है कि किसी तरह का फंगस ना उनके अंदर एंटर कर जाए, कि उनको ब्लैक फंगस ना हो जाए, कि उनको व्हाइट फंगस ना हो जाए, कि उनको येलो फंगस ना हो जाए। इस तरह के भय उनके अंदर डेवलप हो रहे हैं, इस तरह की मेंटालिटी उनकी डेवलप हो रही है। उसका कारण है, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि एक बार एक राज्य में एक महामारी आई। उसने राजा को कहा कि मैं इस डेट को आऊंगी और इतने व्यक्तियों को लेके जाऊंगी, 500 लोगों की मृत्यु होगी आपके राज्य में, आप जो रोकथाम कर सकते हैं कर लीजिए। तो राजा ने कहा कि ठीक है। अब राजा ने क्या किया कि अपने राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि महामारी आ रही है और सभी सावधान हो जाए। तो वो महामारी आई निश्चित डेट पे, और उस जितने दिन उसको रहना था वो रही और चली गई। तो जब वो गई तो अपने साथ 5,500 व्यक्तियों को लेके गई, यानी 5,500 व्यक्ति मर गए थे। तो राजा ने उससे पूछा, भैया तू तो कह रही थी कि 500 लोग चाहिए, ये तो 5,500 ले जा रही है तू। उसने कहा मैंने तो 500 ही मारे हैं, लेकिन 5,000 आपने मारे हैं। जो आपने राज्य के अंदर ये भय व्याप्त किया ना, 5,000 व्यक्ति उससे मरे। दिस इज द रियलिटी, ये फैक्ट है। कोरोना का फैक्ट भी यही है, कोरोना की सच्चाई भी यही है। हमारे शरीर को, हमारे मन को ये एक्सेप्ट, ये अडॉप्ट करना होगा कि आने वाला वक्त इससे भी ज्यादा डेंजरस है, इससे भी ज्यादा खतरनाक है। इसके लिए हम कैसे बचें, और उसके लिए उसमें सबसे बेस्ट उपाय है योग, नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेद। इससे बढ़िया उपाय दुनिया में है ही नहीं। अच्छा, आप ये बात बताइए, जितने भी पैनल पे जुड़े हुए सारे महानुभाव हैं, विद्वज्जन हैं, कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने ये निश्चय, ये निर्णय किया हो, ये संकल्प लिया हो कि मैं अपने जीवन में 500 पेड़ लगाऊंगा, मैं अपने जीवन में नेचुरोपैथी यानी नेचर को, प्रकृति को ग्रो करूंगा, मैं अपने जीवन को प्रकृतिमय बनाऊंगा, मैं अपने जीवन को प्रकृति के नजदीक लेके जाऊंगा, उसके समीप रहूंगा। कितने लोग हैं? मैं बताता हूं, मैं भी उनमें से एक हूं। मेरे एक मित्र हैं जो कोविड से अभी नेगेटिव हुए हैं, वो परसों मेरे पास आए, वो हमारे पतंजलि के पास ही रहते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आपने सीखा इस बीमारी से कुछ? हमें प्रकृति का सहयोग करना चाहिए और हमें कम से कम 500 पेड़ लगाने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ हूं, और हम नीम, पीपल और बरगद, 3 पेड़, 3 तरह की, 3 वैरायटी के 500 पेड़, और भगवान की कृपा रही तो बहुत जल्दी हम लगाने वाले हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम अगर अपने आसपास एक प्राकृतिक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं तो ये वायरस नहीं एंटर कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बताता हूं, जब मैं कोविड पेशेंट के साथ था तो वहां पे जो हमारे सहायक थे, मैं तो पीपीई किट पहन के गया, टू बी वेरी फ्रैंक, लेकिन हमारे जो असिस्टेंट थे, हमारे जो सहायक थे, उनमें से एक ने भी पीपीई किट नहीं पहना, उनमें से एक ने भी डबल मास्क नहीं लगाया, उनमें से एक ने भी ग्लव्स नहीं पहना, गॉट इट? और उनमें से किसी ने भी बार बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं किया। और आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा, मैंने खुद ने पेशेंट का एक्यूप्रेशर किया, मैंने खुद ने पेशेंट की चेस्ट फिजियोथेरेपी किया, मैंने पेशेंट का खुद बैक फिजियोथेरेपी किया, और जो हमारे सहायक थे उन्होंने उनके हाथ और मुंह पकड़ पकड़ के उन्होंने स्पून से फीडिंग कराई। और आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि किसी को भी कोरोना पॉजिटिव, कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ इस 1 महीने में। क्या है ये? क्या है ये? मतलब आप इसमें आश्चर्य करोगे या नहीं करोगे? लोगों ने अपने घरों में अपने आपको कैद कर लिया, दिस इज गुड, हमें अपने लॉ को फॉलो करना चाहिए, दिस इज गुड। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, हम ये जो एक शब्द जो क्रिएट किया गया है ना, सोशल डिस्टेंस, ये बहुत गलत शब्द है, दिस इज नॉट अ अप्रोप्रिएट वर्ड। हमें फिजिकल डिस्टेंस करनी है, सोशल डिस्टेंस नहीं करनी है भाई। ये सोशल डिस्टेंस तो लोग मर रहे हैं मेरे भाई। लोगों को ये मानना होगा कि अगर आप उनसे कांटेक्ट करना बंद कर दे तो अब वो ऐसे मर जाता है यार।
वो ऐसे ही मर जाता है कोरोना का पेशेंट। हमारे हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट एडमिट थे 70% पेशेंट वो थे जिनके घर वालों को उनकी सुधी नहीं थी, वहां पे फेंक के चले गए हॉस्पिटल में और दोबारा देखा ही नहीं उनको कौन है, वो कहां पड़े हैं। तो सोशल डिस्टेंस नहीं भाई, फिजिकल डिस्टेंस करो मेरे यार। जिसको कोरोना हो गया है, आप जितने भी मित्र हैं उसके, उसको दिन में 10 बार कॉल कीजिए, कैसे हो, ठीक हो, कुछ नहीं, दिस इज नथिंग, यू ओके, यू फाइन। मैं आपको गारंटी से बताता हूं 5 दिन में अगर वो पेशेंट बाहर ना आ गया तो। लेकिन उसके साथ ऐसा बिहेवियर किया जाता है जैसे कि उसने दुनिया का सबसे बड़ा पाप कर दिया हो कोरोना पॉजिटिव होके, और वो वैसे ही मर जाता है, वो गिल्टी में मर जाता है बेचारा कि मेरे जैसे कौन सा पाप हो गया कि लोग मेरे से मिलना जुलना, मेरे से बात करनी तक का बंद कर दिया है लोगों ने। खाना भी उसको कुत्ते की तरह दिया जाता है, दरवाजे के नीचे से फेंक दिया जाता है खाना उसके लिए। तो ये हमें समझना होगा, हमें विद्वत जनों को ये मंच पे बैठ के बोलने से कुछ नहीं होता, हमें प्रैक्टिकल में आना होगा। मेरी अभी पे एक कमेंट आया कि स्टे होम स्टे सेफ। अरे मैंने कहा भाई ये टाइम नहीं है घर में स्टे करने का, हमारे लिए तो नहीं है, अननेसेसरी बाहर घूमना नहीं है, लेकिन हमें प्रिकॉशन रखते हुए दूसरों पड़ोसियों का भी ध्यान देना है कि भाई वहां तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। ये योग का एक पार्ट है। योगी हमें सिखाता है सद्भावना, योगी हमें सिखाता है वसुधैव कुटुंबकम की भावना। कितने लोग हैं, लेकिन हम कितने लोग हैं हम जिसको अडॉप्ट करते हैं वसुधैव कुटुंबकम की भावना को। अगर किसी पड़ोसी में कोई कोरोना पेशेंट आ भी गया तो उसके परिवार को लोग अपनी सोसाइटी से निकाल देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि योग में जीवन जीने वाला व्यक्ति, योग के माध्यम से अपने आप को स्टेबल करने वाला व्यक्ति ये नहीं करेगा, ये तो बिल्कुल नहीं करेगा। अब चलिए हम आते हैं विषय पे कि योग के माध्यम से हम किस तरह से अपने आप को फिट करें, कोरोना के वायरस को किस तरह से डेड करें, या कोरोना अगर हो गया है तो हम किस तरह से अपने आप को ठीक करें। तो जिस समय हमें कोरोना हो जाता है तो उस समय आपको एक बहुत ध्यान देने योग्य बातें हैं जो आजकल लोग थोड़ा सा गलती कर रहे हैं, उसमें हमारे योगाचार्य भी थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं। अगर योगाचार्य इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं तो वो भी सुने कि 30 मिनट से ज्यादा योगाभ्यास नहीं करना है। इसको बहुत ध्यान से सुनना। 30 मिनट से ज्यादा किसी हाल में भी योगाभ्यास नहीं करना है, और इन 30 मिनट में सारे सूक्ष्म और रेस्पिरेटरी सिस्टम के जितने भी एक्सरसाइज होती हैं जो चेस्ट को एक्सपेंड करती हैं, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज, और षटकर्म में आप जलनेति को इंक्लूड कर सकते हो। जलनेति इज द वेरी इफेक्टिव प्रोसीजर टू रिमूव द कोरोना वायरस फ्रॉम द नॉस्ट्रल ट्रैक्ट। जलनेति के पानी में आप लौंग को मिलाइए, जलनेति के पानी में आप ब्लैक पेपर मिलाइए, जलनेति के पानी को आप मस्टर्ड ऑयल से कीजिए, आप आलमंड ऑयल से कीजिए। हम जब ऑयलिंग करते हैं नॉस्ट्रल के अंदर, जब हम लुब्रिकेशन करते हैं नॉस्ट्रल के अंदर, तो नॉस्ट्रल में जो ऑयल फैक्ट्री नर्व है, जो क्रेनियल नर्व का ही पार्ट है, वो ऑयल फैक्ट्री नर्व क्या करती है, मैसेंजर्स होते हैं, वो मैसेंजर्स होते हैं नॉस्ट्रल के अंदर जो होते हैं, ऑयल फैक्ट्री नर्व के माध्यम से मैसेज पहुंचता है ब्रेन तक कि हमारे नॉस्ट्रल के अंदर समस्याएं घट रही है। तो जब हम लुब्रिकेशन करते हैं तो ये ऑल्फैक्टरी नर्व जो है इसका फंक्शन प्रॉपर होने लगता है, और जो नजल कॉन्कीज है जिसके माध्यम से टेम्परेचर बैलेंस किया जाता है बॉडी का, माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग तो ये भी नहीं जानते होंगे कि हमारे नॉस्ट्रल के, देखिए हम कहते हैं ये योग का एक प्लेटफॉर्म है। आई थिंक, मुझे लगता है कि मैक्सिमम व्यक्ति जो है योग से रिलेटेड है या योग की बैकग्राउंड रखते हैं। तो सूर्य स्वर और चंद्र स्वर, ये दो नाड़ी हमारे शरीर की, हाँ 3 नाड़ी है, एक सुषुम्ना नाड़ी, लेकिन जो हमेशा एक्टिव रहती है वो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी है। राइट नॉस्ट्रिल जो है वो सूर्य नाड़ी है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल जो है वो चंद्र नाड़ी है। अगर हम राइट नॉस्ट्रिल से रेस्पिरेशन करते हैं तो बॉडी में टेम्परेचर बढ़ने लगता है, स्टिमुलेशन हो जाता है उन 13 प्रकार की अग्नियों का। शरीर में 13 प्रकार की अग्नियां कार्य करती हैं, 7 धात्वाग्नि, 5 तत्वाग्नि और 1 जठराग्नि। इसके मूल में है जठराग्नि। तो जब हम सूर्य भेदी प्राणायाम करते हैं या हम सूर्य स्वर से रेस्पिरेशन करते हैं तो शरीर में निहित 13 प्रकार की अग्नियां स्टिमुलेट होने लगती है और शरीर गर्म होने लगता है। ठीक है, चंद्र स्वर से करते हैं तो शरीर ठंडा होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ट्रैकिया तो एक ही है, विंड पाइप तो एक ही है, तो ये टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है?
टेम्परेचर कैसे चेंज हो गया? चलिए बताता हूं। ये टेम्परेचर चेंज होता है नजल कॉन्कीज के अंदर। नजल कॉन्कीज के अंदर टेम्परेचर चेंज होता है और इसका सीधा संबंध हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से होता है, जिसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और एटर्निक नर्वस सिस्टम, तीनों नर्वस सिस्टम जुड़े होते हैं। हम लोग तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को जानते हो, एटर्निक नर्वस सिस्टम का नाम आपने सुना भी नहीं। तो एटर्निक नर्वस सिस्टम का काम होता है पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को देखना, पूरे एलिमेंट्री कैनाल को वॉच करना। तो जब हम लुब्रिकेशन करते हैं नाक के अंदर, तो ऑल्फैक्टरी नर्व स्टिमुलेट होती है, जो कि ब्रेन को मैसेज देती है कि नॉस्ट्रिल के अंदर एवरीथिंग इज ओके। दूसरा, ड्राइनेस या लुब्रिकेशन, म्यूकस मेम्ब्रेन को एक्टिवेट करना, ये सारा ऑल्फैक्टरी नर्व का कार्य है। लुब्रिकेशन से प्रॉपर होती है, जलने से प्रॉपर होती है। और जो ब्लैक पेपर है या लौंग है, ये एंटीबैक्टीरियल होती है। इसको करने से नॉस्ट्रिल के अंदर जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हुआ है या किसी तरह का वायरस है, उसको यह एलिमिनेट करने का कार्य करता है। यही आपने जलनेती कर लिया, आपने वायरस को ये खत्म कर दिया। यही आपने लुब्रिकेशन कर लिया अच्छी तरह से। अब आप ये देखिए कि अगर आपने ऑयल को अपने नॉस्ट्रिल के अंदर डाला है, तो वो आपकी थ्रोट से नीचे नहीं जाना चाहिए, वो उसको आपने थूक देना है बाहर। आपने लगभग 60-70 सेकंड तक काउंट करना है। अगर आपने नाक में तेल डाला है, ऑयलिंग की है, तो 60-70 सेकंड तक काउंट कीजिए और इतने समय में वो आपके गले में चला जाएगा। उसके बाद आपको उसको थूक देना है। तो उसके साथ आपका जो वायरस है वो भी बाहर जाने के पूरे चांसेस रहते हैं। इसीलिए नाक के अंदर ऑयलिंग किया जाता है। अगर नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन प्रॉपर है, अच्छा कार्य कर रही है और म्यूकस को अच्छी तरह से प्रोड्यूस कर रही है, नॉट इन एक्सेस वे बट इन बैलेंस वे, तो बैक्टीरिया या वायरस नाक के अंदर के सतह पे नाक के अंदर जाता ही नहीं, नॉस्ट्रिल के अग्रभाग में डेड हो जाता है, मर जाता है। तो इसीलिए हमें एवरीडे, आप बिल्कुल भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप नाक के अंदर 10-12 ड्रॉप ऑयल डालिए। आप नहाने के बाद अपने हथेली पे थोड़ा सा तेल लीजिए, सरसों का शुद्ध तेल होना चाहिए लेकिन, या बादाम रोगन लीजिए, उसको आप इंडेक्स फिंगर पे लगाइए और अपने नॉस्ट्रिल के अंदर उसको लुब्रिकेट कर लीजिए। दिस इज द गुड वे। उसके बाद आता है आपका लंग का अंदर अगर आपके बैक्टीरिया चला गया है तो क्या करें? तो चेस्ट ब्रीदिंग, जिसको डायफ्रामिक ब्रीदिंग भी कहते हैं, वो सबसे बेस्ट उपाय है फेफड़े को मजबूत करने का और फेफड़े की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए। क्योंकि बैक्टीरिया सबसे तगड़ा काम करता है फेफड़े की फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर, उसको डेड कर देता है, फेफड़े की फ्लेक्सिबिलिटी को खत्म कर देता है, जिसकी वजह से हार्ट को बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है और हार्ट अटैक हो रहे हैं, जैसे मैं पहले बता चुका हूं। तो अगर हम डायफ्रामिक ब्रीदिंग करते हैं तो फेफड़ा मजबूत होता है, फेफड़ा फ्लेक्सिबल होता है और फेफड़े के टिश्यूज के अंदर शुद्ध ऑक्सीडेटेड ब्लड का फ्लो शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से डेड सेल्स बाहर निकलने लगते हैं और नए सेल का निर्माण होने लगता है और फेफड़ा पुनर्जीवित होने लगता है, फेफड़ा दोबारा से जीवित होने लगता है। नेचुरोपैथी में इसका उपाय है बहुत अच्छा। ये जो पानी की पट्टी है, गर्म पानी, गर्म पट्टी जिसे कहते हैं, इसमें कॉटन का कपड़ा लगभग 9-10 इंच चौड़ा होना चाहिए और वो इतना लंबा हो कि उसकी छाती के ऊपर 3-4 लपेट आ जाए। उस कपड़े को अगर सर्दी है तो हल्के गर्म पानी में और अगर गर्मी है तो नॉर्मल पानी में डुबाइए और अच्छी तरह से निचोड़ के छाती के ऊपर उसके लपेट मार दीजिए। लपेट लगाने से पहले छाती को अच्छी तरह से रगड़ लीजिए ताकि वहां पे थोड़ा सा वार्मनेस, वो गर्म हो जाए छाती। उसके बाद उसको लपेट मार दीजिए और ऐसा लपेट मारिए कि सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। उसके ऊपर वूलन कपड़ा 3-4 लपेट मार दीजिए। वूलन कपड़ा सूखा होना चाहिए और वूलन कपड़े की चौड़ाई कॉटन से थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए ताकि वो दोनों साइडों से कवर करे। और ये 2 घंटे से लेकर 4 घंटे तक इस पट्टी को आप फेफड़े के ऊपर रखिए। इससे फेफड़े को ताकत मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है और यह इन्फ्लामेशन को सक करने का बहुत अच्छा तरीका है। पट्टी जो होता है बहुत ही प्रभावशाली तरीका है। आप जिसको कभी शॉर्ट थ्रोट हो जाए, गले में दर्द हो जाए, गले में खराश हो जाए, ये 3-4 इंच चौड़ी पट्टी गले पे लपेट लें, कॉटन की पानी में भिगो के निचोड़ के और उसके ऊपर वूलन कपड़ा लपेट दें और 2 घंटे से 4 घंटे तक रहने दीजिए। उसके बाद आप देखिए आपका थ्रोट एकदम क्लियर हो जाता है। हम तो एवरीडे यहाँ प्रयोग करते हैं इन चीजों का, इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज में आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। उज्जाई प्राणायाम बहुत प्रभावशाली है ट्रैकिया को क्लीन करने के लिए। डायफ्रामिक ब्रीदिंग का बहुत बड़ा रोल है। सूक्ष्म व्यायाम का बहुत बड़ा रोल है। चेस्ट एक्सपेंशन के जितने भी पोस्चर्स हैं, हल्के फुल्के चेस्ट एक्सपेंशन के पोस्चर्स जितने भी हैं, जैसे ये चेस्ट के सामने, जैसे ये फोरहेड के सामने, जैसे ये अपवर्ड,
ये 3 पार्ट में किया जाता है और ये ब्रीथ इन करके करें। तो दूसरा, बैठे बैठे आप बैठे बैठे चेस्ट का एक्सपेंशन कर सकते हैं। ये सारे चेस्ट एक्सपेंशन है, ये सारे चेस्ट एक्सपेंशन है, ये सारे चेस्ट एक्सपेंशन के अभ्यास है। इससे ज्यादा करना ही नहीं है। अभी हम क्या कर रहे हैं, लोग भी क्या कर रहे हैं कि टीवी पे देखते, स्वामी जी को टीवी पे देखा, इंडिया टीवी पे 2.5 घंटे योगा अभ्यास कर दिया उन्होंने। वो कोरोना से बिल्कुल मुक्त हो चुके थे, नेगेटिव आ चुके थे, लेकिन दोबारा से उसकी गिरफ्त में आ गए। कोरोना पॉजिटिव नहीं हुए, लेकिन सारे लक्षण प्रकट हो गए, क्योंकि कोरोना में सबसे ज्यादा हमारे इम्यून सिस्टम को ध्वस्त किया है और हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ को तोड़ा है। आप देखो, कोरोना जिसको हुआ है वो 15-20 दिन तक तो ठीक से चल भी नहीं पाता है, और वो व्यक्ति क्या करते हैं, जोश में आके 1-1, 1.5, 2-2 घंटा योगाभ्यास कर रहे हैं। योगाभ्यास के लिए क्या चाहिए, रेजिस्टेंस पावर चाहिए। रेजिस्टेंस पावर तो है नहीं, रेजिस्टेंस पावर तो है नहीं, लेकिन हमने 2-2, 2.5 घंटा योगाभ्यास शुरू कर दिया, तो क्या हुआ, सारे लक्षण दोबारा प्रकट हो गए और पेशेंट दोबारा से उसी कंडीशन में चला गया। तो मेरा सभी योगाचार्यों से ये निवेदन है कि योग कराओ, बहुत बढ़िया चीज है और इसी से निजात मिलनी भी है, लेकिन बहुत स्लाइटली शुरू करें, बहुत हल्के से शुरू करें, 30 मिनट मैक्सिमम कराएं और धीरे 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 बढ़ा सी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। तो योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से, नेचुरोपैथी के माध्यम से न केवल हम फिजिकली बल्कि मेंटली और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को भी पुनर्जीवित कर सकते हैं, दोबारा से पा सकते हैं। जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव और हमारे पिता तुल्य डॉक्टर आदरणीय सुरेंद्र त्यागी जी ने इससे पहले लेक्चर में बताया कि स्पिरिचुअल जो हेल्थ है वो शरीर से ही शुरू होती है, मन से ही शुरू होती है। अन्नमय कोश की साधना के बाद प्राणमय कोश, उसके बाद मनोमय कोश। प्राणमय कोश, अन्नमय कोश और मनोमय कोश के बीच का मीडिएटर है। ये प्राणमय कोश बिल्कुल उसी तरह कार्य करता है जिस तरह से सैटेलाइट कार्य करता है। अगर आपके हाथ में 1 लाख रुपए का मोबाइल है और मेरे हाथ में 1 लाख रुपए का मोबाइल है, लेकिन सैटेलाइट नहीं है, तो बातचीत नहीं हो सकती, हमारे मैसेज कन्वे नहीं हो सकते। तो रोल काहे का है, नेटवर्क का, सैटेलाइट का। तो प्राण अगर मजबूत है, हमारे शरीर का अगर वाइटल मजबूत है, तो मेंटली भी हम फिट रहेंगे और फिजिकली भी फिट रहेंगे। यही ध्यान दिया जा रहा है एलोपैथी में भी। वाइटल को किस तरह से बैलेंस किया जाए, जिस तरह से स्टेरॉइड दिए गए, जिस तरह से एंटीबायोटिक दिया गया है, इसने वाइटल ऑर्गन्स को सबसे ज्यादा डैमेज किया है। इसी वजह से पेशेंट ठीक होने के बजाय मृत्यु के गाल में समा गए। तो हमें वाइटल पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। वाइटल अगर मजबूत है तो शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि वाइटल इज द मीडिएटर। तो हमें वाइटल के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, और इसके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज द बेस्ट रेमेडी। द ब्रीदिंग एक्सरसाइज, द डाइट रिस्ट्रिक्शंस। देखिए, अब मैं आपको डाइट का थोड़ा सा बता देता हूं कि जब हम इस वायरस से ग्रसित हो जाते हैं तो बॉडी के अंदर ऑलरेडी एसिडिक फैक्टर्स ज्यादा बनने लगते हैं। जैसे मैंने बताया कि साइटोकाइंस ऑलरेडी एसिडिक फैक्टर, दिस इज अ प्रोटीन बट द एसिडिक फैक्टर्स, एसिडिक प्रोटीन। तो हमें क्या करना है, और ऊपर से हमने रेमडेसिविर ले लिया, ऊपर से हमने वाइसलोल ले लिया, इसको मेड्रोल भी कहते हैं, ये सारे स्टेरॉइड तो है, और हमने एंटीबायोटिक ले लिया। तो इसने क्या किया, बॉडी में यानी ब्लड के अंदर एसिडिक फैक्टर्स को और ज्यादा इंप्रूव कर दिया। इसी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा स्किन रैशेस, बहुत ज्यादा एसिडिटी, बहुत ज्यादा इंडाइजेशन और बहुत ज्यादा वॉमिटिंग सेंसेशन हो रहे हैं। दिस इज द प्रॉब्लम। तो हमें क्या करना है, बॉडी को अल्कलाइन करना है। अल्कलाइन में क्या आता है, लौकी, तोरी, आपका लौकी, तोरी, टिंडा, परवल, और ये सारी जो सब्जियां हैं ये सब अल्कलाइन ही है। तो हमें अल्कलाइन चीजों को ज्यादा प्रयोग करना है अपने आहार। तो डाइट रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करें, प्राणायाम करें, हल्का फुल्का, थोड़े बहुत सूक्ष्म व्यायाम करें, थोड़ा विचारों को पवित्र करें। जैसे मैंने बताया कि अगर हमारी सोच अच्छी होगी तो सिक्रेशन बैलेंस होंगे तो हमारा डाइजेशन इंप्रूव होगा। क्योंकि अगर स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है तो स्ट्रेस हार्मोन्स ज्यादा बढ़ने लगते हैं, जिसमें कार्टिसोल भी है। कार्टिसोल अपने आप में एक स्टेरॉइड है। अगर वो बढ़ जाता है तो सबसे पहला प्रभाव वो डाइजेशन के ऊपर करता है। सबसे पहला प्रभाव डाइजेशन को ध्वस्त करने का होता है। उसका डाइजेशन ऑलरेडी खत्म हो चुका है, स्ट्रेस में हम रहते हैं तो वो और ज्यादा खत्म हो जाता है। थॉट अच्छे रखने हैं, डेफिनेटली हम सब इस चीज से बाहर आएंगे और एक नया सवेरा देखेंगे। और आप सब विद्वत जन जो है ये समाज में लगे हुए हैं अच्छा कार्य करने के लिए।
सब समाज को दिशा दे रहे हैं। मैं पुनः पूरी टीम का और हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, हमसे बहुत एक्सपीरियंस्ड है, उनको प्रणाम करता हूँ और पूरा सारी टीम को धन्यवाद करता हूँ। सारे व्यूअर्स जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सबको धन्यवाद करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ क्योंकि टाइम हो चुका है। तो हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने इतना समय निकाला हमारे कॉलेज के लिए और हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को इतने अच्छे से आपने डिटेल में इस मुश्किल समय में गाइड किया है। और ये सारी जितनी इंफॉर्मेशन आपने आज हमें दी है, जितनी सिखलाइयां दी हैं, ये सभी सबके बहुत काम आएंगी और सभी का इस महामारी के समय पर इन बातों का ध्यान रखते हुए, उपयोग करते हुए कई जिंदगियों को जरूर बचाएंगे सर। बच्चों को भी तौर पे प्रेरणा मिली होगी सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया मैं करूंगा कि आपने मुझे इनवाइट किया इस प्लेटफॉर्म के सर, ये आपका बड़प्पन है, इस एक्सपीरियंस को शेयर कर दूं। शुक्रिया तो हमें करनी। जी थैंक यू सर। जी थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। तो हमारे बीच आज हमारे मैनेजिंग कमेटी से आदरणीय डॉक्टर डीवी सेठी सर ने भी ज्वाइन किया हमारे साथ। तो सर का भी मैं बहुत स्वागत और धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने अपने बहुमूल्य समय से समय निकाला। और हमारे पहले स्पीकर और सचिन जी को भी उन्होंने सुना, पर शायद टेक्निकल रीजन की वजह से लेफ्ट हो गया। तो अब हमारे बीच डॉक्टर सोमवीर आर्य जी ज्वाइन हैं, जो योगा टीचर है इंडियन एम्बेसी यूएसए में, और डॉक्टर त्यागी जी के ये रिसर्च स्कॉलर भी हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपसे भी विनती करूंगी कि 1-2 मिनटों के लिए आप भी ये हमारे पार्टिसिपेंट्स को एड्रेस करें। माइक ओवर टू डॉक्टर सोमवीर आर्य जी। सबको नमस्ते, प्रणाम। बहुत धन्यवाद करता हूँ डीएवी की पूरी टीम का, डॉक्टर उमेश जी का, डॉक्टर प्रिया कपूर जी का। और अभी बोलने को कुछ शेष नहीं है। पहले सेशन में आदरणीय पूज्य गुरुवर डॉक्टर सुरेंद्र कुमार त्यागी जी ने बोला और अभी डॉक्टर सचिन त्यागी जी ने गागर में सागर भरने का काम किया और पूरा टेक्निकली समझाया कि कैसे कैसे हम कोविड से बच सकते हैं, किस प्रकार से एग्जाम्पल दिया कि हमें पैनिक नहीं होना है और किस प्रकार पैनिक होने से बहुत ज्यादा जो कंडीशन है वो खराब हो रही है। तो मैं कहूंगा कि डॉक्टर सचिन त्यागी जी ने भी जितनी जानकारियां हमें दी और नेचुरोपैथी से लेकर के षटकर्म से लेकर के जिनका उनका प्रयोग कर सकते हैं, और विशेष तौर पे उन्होंने जो कहा कि हमें जितने भी जो योग टीचर हैं उनको विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज्यादा योग नहीं करवाना है। उनकी एज पर योर नीड एंड कैपेसिटी का जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करना है। जितनी नीड है और कैपेसिटी है उसका तालमेल हमें बनाना है। तो किस प्रकार से और स्पिरिचुअलिटी को और स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए किस प्रकार से प्राणमय कोश को इम्पोर्टेंट बताया, रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्पोर्टेंट बताया, वो सारा उपनिषदों से लेकर हमारा ज्ञान है और हमारे इस ज्ञान का उपयोग हमें करना चाहिए। तो डॉक्टर सचिन त्यागी जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ और मेरे पूज्य गुरुवर डॉक्टर सुरेंद्र कुमार त्यागी जी जो एचओडी हैं अभी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में, तो उनका भी मैं बहुत आभारी हूँ। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने पीएचडी का जो काम है वो आदरणीय गुरु जी के अंडर में मैंने पीएचडी की। और जब भी मैं किसी को बताता था कि वो कहता था कि आपका पीएचडी का गाइड कौन है, तो मैं जब कहता था कि डॉक्टर सुरेंद्र कुमार त्यागी जी मेरे पीएचडी गाइड हैं, तो कहते थे आप भाग्यशाली हैं, लगता है आपने गंगा में जो बो रखे हैं इसलिए आपको इतने अच्छे गाइड मिले। तो मुझे उनका सानिध्य मिला और हमारा एक पिता पुत्र का संबंध रहा और हमेशा मुझे उन्होंने स्नेह दिया। और आज भी जब भी मैं कोई लेक्चर देता हूँ, कुछ कहता हूँ, तो उनकी जो स्मृतियां हैं, जो उनके जो बताए गए जो उपदेश हैं, वो मेरे मस्तिष्क पे आज भी छाए हुए हैं। बहुत सारे बच्चे सिनॉप्सिस के लिए बोलते हैं, तो मैं जब सिनॉप्सिस तैयार करवाता हूँ उनकी, तो मुझे गुरुजी के वो सारे वाक्य याद आते हैं और उन वाक्यों का मैं भरपूर प्रयोग करता हूँ। तो मेरा निवेदन है पूज्य गुरुजी द्वारा दी गई आध्यात्मिक स्ट्रेंथ, यानी कि जो आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है वो कैसे डेवलप हो, इन सारे बिंदुओं को आप आत्मसात करने का काम फिर डॉक्टर सचिन त्यागी जी ने किस प्रकार से फिजिकल स्ट्रेंथ हो, मेंटल स्ट्रेंथ को डेवलप कर सकते हैं, इन सारी चीजों की नॉलेज हमें दी है। नॉलेज लेना होता है एक जानना और एक होता है उसको मानना। तो उसको इम्प्लीमेंट जब तक नहीं करेंगे, उसको व्यवहार में जब तक लागू नहीं करेंगे, जब तक वो चीजें फायदा नहीं देंगी। जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया
कि आपके पास भी 1 लाख रुपए का फोन है और मेरे पास भी 1 लाख रुपए का फोन है, और यदि नेटवर्क नहीं है तो आप कनेक्ट नहीं कर सकते। तो कनेक्ट कब करेंगे, तो फायदा कब होगा उस 1 लाख रुपए के मोबाइल का, वो तब होगा जब आप में कनेक्टिविटी होगी, आपके अंदर कनेक्शन होगा, आपके अंदर, आपके मोबाइल के अंदर रेंज होगी, और वो रेंज आएगी, वो पावर आएगी, वो स्ट्रेंथ आएगी आपका इन चीजों को आत्मसात करने से। मीठा मीठा कहने से कभी मुंह मीठा नहीं होता, उसके लिए मीठा पदार्थ खाना पड़ता है। तो योग योग कहने से योग सिद्ध नहीं होगा, योग का अभ्यास करना पड़ेगा, और उस अभ्यास का जो पालन करेगा वो अपने जीवन में चमत्कारिक परिणाम देखता है। मेरे जीवन के भी बहुत सारे एक्सपीरियंस है जो फिर कभी हम शेयर करेंगे, लेकिन आज जो डॉक्टर सचिन त्यागी जी और पूज्य गुरुवर द्वारा जो बताई गई जानकारियां हैं, मेरा आप सबसे निवेदन है कि उनको इम्प्लीमेंट करें, आत्मसात करें, अपने ऊपर प्रयोग करें, और फिर अपने जो सगे संबंधी हैं, मित्र हैं, उनको प्रेषित करें। इस व्याख्यान का जो लिंक है, जिसकी रिकॉर्डिंग है, उसको व्हाट्सएप पे शेयर करें। हम सारा दिन उलुल जुलुल मैसेज फॉरवर्ड करते हैं अपने फैमिली ग्रुप में, अपने दोस्तों के ग्रुप में। तो इस तरह के इंफॉर्मेटिव जो लेक्चर हैं उनको डिलीवर करना चाहिए, उनको सेंड करना चाहिए। तो इतने शानदार और इंफॉर्मेटिव सेशन को आयोजित करवाने के लिए मैं पूरी टीम डीएवी का, फरीदाबाद का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और मुझे भी इसका पार्ट बनाया और मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया, इसके लिए भी मैं हृदय से डॉक्टर प्रिया कपूर जी और उमेश जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, और पूरी टीम डीएवी फरीदाबाद का धन्यवाद करता हूं। और सबसे जितने भी आप लोग जुड़े हैं, एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इसको इम्प्लीमेंट करें, अपने जीवन में आत्मसात, अपने व्यवहारिक रूप से इसको लागू करने का काम करें और चमत्कारिक परिणाम देखें। आप सबने इतनी देर मुझे सुना, मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर रंजना जी हमारे साथ ज्वाइन है सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू से, कि मैम आप भी 2 मिनट के लिए ही ये अपना आज का एक्सपीरियंस, आज का फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर करें। डॉक्टर रंजना जी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू से। नमस्कार सभी को। आदरणीय डॉक्टर सुरेश शर्मा जी, सुरेश त्यागी सर, एंड डॉक्टर सत्यपाल जी, डॉक्टर सरला भगत जी, एंड डॉक्टर सचिन त्यागी जी, और जिनके नाम मैं नहीं यहाँ पे ले पाऊँ उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, बट सभी ने इतनी अच्छी जानकारी दी और बहुत लिमिटेड समय में डिसिप्लिन में रहते हुए अपने शब्दों को जो है उन्होंने हम तक पहुंचाने का एक प्रयास किया। और मैं डीएवी कॉलेज की तरफ से जो ये प्रयास किया गया उसके लिए भी उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरा ये मानना है कि एक अच्छा टीचर वही है जो सदैव एक अच्छा विद्यार्थी और एक अच्छा साधक बनकर रहे। तो मेरे को जब भी मौका मिला है त्यागी सर से सीखने का या डॉक्टर सचिन सर से सीखने का, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि उन्होंने जब भी सिखाया है बहुत नपे तुले शब्दों में और एक लेमैन लैंग्वेज में सिखाने की कोशिश की है। तो आज का जो सर था वो बहुत ही सुंदर तरीके से सर ने रखा कि उन्होंने पहले अच्छे से बताया कि हमने कैसे फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली अपने आप को कनेक्ट करना है। और सचिन सर ने बहुत खूबसूरती से बताया कि किस प्रकार इस कोविड के समय में हम अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं। पॉजिटिविटी बहुत मैटर करती है। मैं आप सबसे शेयर करूंगी कि मैं भी एक योग शिक्षिका होने के साथ साथ यहाँ पर पिछले 25 से 26 वर्षों से जम्मू कश्मीर में योग का जो है वो अपना योगदान दे रही हूँ। और बहुत से केसेस ऐसे भी थे कि जिनको हमें डांट डपट के भी उनका डर भगाना पड़ा कि डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। तो अगर आप डर के रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, आपने हौसला रखना है और हौसला रख के हमने इस चीज को निकलना है। और जिस हिसाब से सचिन सर ने बहुत खूबसूरती से उनका जो एक टॉपिक रहा है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को, वो बहुत खूबसूरती से समझाते हैं अपने विद्यार्थियों को कि जो एक छोटे से छोटा बच्चा भी अगर उससे सीखना चाहेगा तो वो बहुत अच्छे से सीख जाता है और उसे कभी भूलेगा नहीं वो चीज। तो मैं उनकी इस चीज के लिए बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने जो एक कहानी के साथ कनेक्ट करके बताया कि हाउ टू कीप आवर थिंकिंग इन पॉजिटिव वे, कि पॉजिटिव अगर थिंकिंग हम अपनी रखेंगे तो कोविड कुछ भी नहीं है। मैं मानती हूँ कि ईश्वर ने कोविड आपको एक ऐसा समय दिया है कि ये एक गिफ्ट है आपके लिए, कि इस समय आप सब अपने आप के साथ जुड़ सकते हैं। योग की शिक्षा को यदि हम भूल चुके थे तो उस शिक्षा को
पाने का समय आपको मिला है, उस शिक्षा को और अधिक आगे ले जाने का मौका मिला है। हर एक व्यक्ति को इस समय योग सीखने की ललक है। जो हमारी खुद की संस्कृति है, हमारे ऋषि मुनियों की दी हुई संस्कृति है, आज वो समय आ चुका है कि जब हमारा भारत विश्व गुरु बनने की स्तर पर है। तो मैं यही कहूंगी कि कोविड को नेगेटिव में नहीं लीजिए, कोविड को पॉजिटिव में लीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग में लीजिए। अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो वो आपको एक मैसेज दे रहा है कि मुझे आपने नेगेटिव कैसे करना है। आपने योग के माध्यम से अपने आप को नेगेटिव करना है, लेकिन मानसिक रूप से आपने अपने आप को पॉजिटिव रखना है। तो सर ने जो एक मैसेज अभी कन्वे किया कि प्रकृति से जुड़िए, जितना भी आप अपने आगे पीछे वनों का जो है वो पेड़ पौधों का जो है रोपण करेंगे, वो बहुत उत्तम है। तो मैं बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि मैं इस मिशन में पिछले 10 सालों से जुड़ी हुई हूँ। तो अराउंड अभी तक मोर देन 10,000 प्लांट्स लगवा चुकी हूँ, और कल हमारा एनवायरनमेंट डे फिर से है जिसपे हम प्लांटेशन डे सेलिब्रेट करेंगे। तो मैं सबका बहुत दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि सुरेंद्र त्यागी सर ने बहुत बहुत सुंदर शब्दों में हमें अपने जो है वो शरीर, मन और आत्मा के बारे में बताया कि कैसे ध्यान की स्थिति में हम स्वयं को पॉजिटिव रख सकते हैं, अपने विचारों को जो है वो शुद्ध रख सकते हैं, और हमारे विचार, हमारी शुद्धता वही इस चीज के ऊपर कार्य करेगी। तो मैं अधिक समय ना लेते हुए अपने शब्दों को विराम देते हुए सबका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। अधिक अधिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रंजना जी, आपने अपने विचार हमारे साथ शेयर करे। अब अधिक समय ना लेते हुए कार्यक्रम को आगे हम अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। तो धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए मैं कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मिस्टर उमेश कुमार जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो प्लीज वोट ऑफ थैंक्स के लिए आए। उससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट और करना चाहूंगी कि सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए जो सर्टिफिकेट्स हैं, बिकॉज हमारे पास रजिस्ट्रेशन का काउंट ही इतना ज्यादा है कि मोर देन 1000 रजिस्ट्रेशन हमारे पास हैं, तो इट विल टेक टाइम, और अबाउट 10 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपके सर्टिफिकेट्स हम आपको मेल कर देंगे। सर्टिफिकेट्स उन्हीं को मेल किए जाएंगे जो आज का फीडबैक फॉर्म 8 बजे तक भर देंगे। माइक ओवर टू मिस्टर उमेश कुमार। प्रणाम सभी को, नमस्कार। आज मुझे इस कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापित करने की जिम्मेदारी दी गई। सबसे पहले मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं हमारे पूजनीय गुरुदेव माननीय प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार त्यागी जी, जिन्होंने अपने कीमती से बेशकीमती समय दिया। आपके वक्तव्य ने हम सभी को जागरूक करते हुए और सोचने पे मजबूर किया कि हम कुछ करें, हमें आगे भी कुछ करना है। हम आपको ऐसे ही निरंतर सुनते रहे। अब मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं डॉक्टर सचिन त्यागी जी का। सर ने बहुत ही बिजी शेड्यूल में, बहुत ही व्यस्त समय में ये हमें समय निकाल के हमें इन आर्टरीज, ब्रोंकाइज, एल्बो, जो भी हमारे लंग्स और हार्ट से रिलेटेड फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस को इतना ही गहनता से समझाया, हमें बताया। मैं धन्यवाद करता हूं सर का, और खास तौर हमारे छात्रों को सच में ही जागृत होना है, जागना है। और साथ ही मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं माननीय श्री पद्मश्री पूनम सूरी जी का डीएवी सेंट्रल डीएवी मैनेजमेंट कमेटी का दिल्ली से। और मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं माननीय डॉक्टर डीबी सेठी जी का, उप प्रधान डीएवी मैनेजिंग कमेटी। मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं माननीय सत्यपाल आर जी का, हरियाणा प्रादेशिक सभा का। हमारे कॉलेज की कार्यवाहक प्राचार्य महोदय माननीय श्रीमती सविता भगत जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और प्राचार्य महोदय ने हमें ये मौका दिया, और उनके मार्गदर्शन या सहयोग के बिना इस कार्यक्रम का होना असंभव था। ये प्राचार्य महोदय का ही विचार था, और इस विचार का परिणाम जो सकारात्मकता की ओर गया, जिसके कारण
आज इस विषय पर इस कार्यक्रम का आयोजन हो पाया। अब मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं माननीय इस कार्यक्रम के संयोजक माननीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार का, जिनके दिशा निर्देशन के फलस्वरूप ये एक कार्यक्रम आयोजित हो सका। मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं सभी पार्टिसिपेंट्स का, जिनके उत्साह ने हमें इस कार्यक्रम के लिए एक ऊर्जा दी। अब मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर मनोज गोयल सर का, मैडम उत्तमा पांडे मैम का, टेक्निकल टीम मेंबर सर मिस्टर दिनेश सर का, मिस्टर प्रमोद सर का और डॉक्टर प्रिया मैम का। और मैं धन्यवाद करता हूं निदेशक उच्च शिक्षा विभाग पंचकुला हरियाणा का, जिन्होंने हमारे इस वेबिनार को अप्रूवल देकर के हमें इस कार्यक्रम को करने का मौका दिया। धन्यवाद टू ऑल।